Start, sir. कर दें सर? हाँ जी, हाँ जी। Respected members, good afternoon. I welcome you all on this webinar on NGO, income tax taxation of NGO non-government organization. And today's speaker is Honorable R. Pitama Guruji, Sir P.A. Greece Ahuja ji. I welcome you, sir, in Himachal Pradesh. It is like a dream for me कि आज हिमाचल प्रदेश ब्रांच की मैं डॉक्टर सर की प्रेजेंस जो एक बहुत मायना रखती है मेरे लिए सर. तो आई वेलकम यू ग्रीस सर एंड आई आल्सो वेलकम थैंक यू सीए शशांक अग्रवाल जी, चेयरमैन NIRC, सीए रतन सिंह यादव जी, निकासा चेयरमैन, सीए विजय कुमार गुप्ता जी, निकासा मेंबर, एंड RCA अजय सिंगल जी, सेक्रेटरी NIRC, जो अभी टेक्निकल इशू की वजह से ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे. तो सर ज्यादा कुछ मैं और टाइम ना वेस्ट करूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीए विजय कुमार गुप्ता जी से, निकासा मेंबर, कि प्लीज से अ फ्यू वर्ड इन दिस ओकेजन टू द मेंबर ऑफ आवर ब्रांच एंड आल्सो ऑल द मेंबर हु जॉइंड दिस प्रोग्राम. थैंक यू मनु जी. थैंक यू मनु जी, चेयरमैन हिमाचल प्रदेश ब्रांच, एंड वेलकम आवर चेयरमैन NIRC शशांक अग्रवाल जी एंड चेयरमैन निकासा रतन सिंह यादव जी. टुडे इज आवर स्पीकर गिरीश आहूजा जी, डॉक्टर गिरीश आहूजा जी. He is like god of taxation in India, we can say. Since when I started in the profession, I am listening only Girish Ahuja ji since foundation days. So this is a second day of our direct taxation series in 7 days program. So in this series we will learn about the taxation of NGOs. There are 3 types of NGOs like trust, society, and Section 8 companies. So which will be beneficial according to the requirement of the organization to run the NGO. So now I invite Ratan Singh Yadav ji, Nikasa chairman. थैंक यू विजय जी. थैंक यू मनु शर्मा जी, चेयरमैन हिमाचल ब्रांच, हु इज होस्टिंग दिस सेमिनार ऑफ आवर गुरुओं का गुरु श्री सीए डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, जिनको सीए शायद बड़े हो इतने साल होगी जितनी मेरी उम्र है, 50 साल के आसपास. तो मैं सर का भी वेलकम करूंगा. और सर की तारीफ तो ऐसे होगी कि जैसे भाई रोशनी हो दीपक और उसको कहें कि हम और दीपक दिखाएं, तो ऐसी होगी, अतिशोक्ति होगी कि सर के बारे में कोई मैं इंट्रोडक्शन दूं या कुछ बताऊं कि ऐसा कोई इस हमारे देश में ऐसा कोई मुझे लगता नहीं जो हमारे प्रोफेशन की समझ रखता हो, चाहे वो किसी भी एंगल से हो या गवर्नमेंट मशीनरी में, जो आहूजा जी को ना जानते हो. और सर का हमेशा ब्लेसिंग्स हमारे सीएज पे प्लस ब्रांचेस पे बनी रहती है. और मनु जी ने जो सर का प्रोग्राम रखा उसके लिए मनु जी का भी धन्यवाद. हमारे चेयरमैन शशांक जी, सेक्रेटरी अजय जी और निकासा मेंबर विजय जी. मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, हम बीच बीच में बाद में सवाल जवाब भी करते रहेंगे, क्योंकि हम सर को सुनने आए तो अच्छा है कि उसका फ़ायदा मेंबर्स को ज़्यादा मिले. और क्योंकि ये क्राइसिस तो है, कोविड-19 में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, ऐसी हम तो आपको आवाज़ देकर या बोलकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ आई इनवाइट अजय जी टू से फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम. अजय जी प्लीज. अजय जी शायद निकल चले गए हैं, तो शशांक जी आप प्लीज. Very good evening to all of you, and again thank you Manu ji for hosting such a beautiful session today. And as we all know that Girish is taking a session, so without wasting much time, let's start the session. And I request all the members and students, please donate to COVID-19 fund of ICI, so that we can all stay united in the urgent need with the government as well. So please, sir, please everyone do donate in the COVID-19 fund. Either 500, either 1,000. Yeah, please. Thank you, Shashank ji. Chairman of the Himachal branch, CA Manu Sharma ji. Chairman of the NIRC, Shashank Agarwal ji. Nikasa Chairman, CA Ratan Singh Yadav ji. Nikasa Member, of course, CA Vijay Kumar Gupta ji. The Secretary of the branch, Secretary of NIRC is not visible. Let me name him, CA Ajay Singhal ji, and friends.
let me talk to you about this thing. First, let me explain to you that rightly pointed out by Vijayji that there are three kinds of trust which some people say trust. Trust does not mean trust, it includes other obligations also. So therefore, when you say charitable institution or charitable trust, it consists of three things. Either you form a society, get it registered under the Society Registration Act, and then take approval or registration under Income Tax Act. This is one way. Then you form Section 8 company. Earlier it used to be called Section 25 company. You form it, get it registered, then you come to Income Tax Department, take approval or take registration. This is second. And third is you create a trust. You create a charitable trust. First get it registered there under charity, and thereafter get it registered or approved under Income Tax Act. Is this clear? All are called a charitable trust or institution. First point. Second point. We have two sections under which exemption may be taken for charity. One, of course, is Section 1023C. Section 1023C, vis-a-vis, of course, we have Section 11 and 12, but for that we need registration under 12A, and you get registration under 12AA, which has now become 12AB. So please note, what is a charitable purpose? Let me explain you first. It's very important. Section 2, clause 15 talks about what is a charitable purpose. It says charitable purpose include relief to the poor, education, yoga, medical relief, or preservation of environment, including watershed, wildlife, and preservation of monument and other places. And the last is advancement of any other object of general public utility. This is the meaning of a charitable purpose. These charitable trust will get exemption if they are registered under Section 12AA. Now it will be 12AB. If they are registered under 12AA, then only they will get this deduction, this charitable purpose. First point is clear to you. They are registered. They are all kinds of, but wait. There are some institutions which can get approval under 1023C. I'm not talking about notified trust or notified religious institution. I'm talking about university, college, school, or other educational institution, not for making profit, but for imparting education. They can come under 1023C, either 1023C, or they can go for registration under 12AA, which is now 12AB. Similarly, hospital or medical institution, not for making any profit, but for philanthropic purposes, have two alternatives. Either get approval, please note the word approval, under 1023C, or registration, not the approval, under Section 12AA, now 12AB. Clear? Now, before I make a distinguish between what is 1023C and what is 12AA, 1112 exemption, before that, let me come to Section 1023C. There are some clauses. Section 10, clause 23C, there is a clause, subclause 3IAB. Next is subclause 3IAC. Next is subclause 3IAD. Next is subclause 3IAE. Then there is IV Roman. Then there is V Roman. Then there is VI. And the last is subclause VIA. Please listen to this carefully. You know it, but you don't know subclauses. That's why you say you may be finding out what kind of a thing I'm talking about. Nothing new. Try to understand. Section 1023C, 3IAB. Income of a university or educational institution
not for making profit, but for imparting education, who are substantially or wholly financed by the government, shall be fully exempt as per section 1023C, subclause 3 IAB, fully exempt. Please note, wholly or substantially financed by the government. Government means central government or state government, no problem. Financed by the government. Wait. Substantially means more than 50% financed by the government. Wholly, there is no need to apply. 100% coming from government or more than 50% coming from the government, that is section 1023(3) IAB. Please note, no condition to be satisfied, no approval required under 1023C, no audit required, nothing, no 85%, 15%. But one thing important, filing of return is mandatory. That's all. They have to file return, which was there earlier, it was not there in that. But for the last 3 years, it is mandatory for them to file a return. Otherwise, there is no other condition. Their income is totally exempt. Similarly, income of a hospital or a medical institution, not for making profit, but for philanthropic purposes, which is wholly or substantially financed by the government, shall be fully exempt. Same. No difference. There it was educational, university, here hospital, medical institution. Fully exempted, no condition, no 85, nothing, return mandatory, that's all. Coming to the next. Grisha, some questions are coming. So should we take it in last only, na? Or should we take in between? It is up to you. It is up to you. I have no problem answering and in between also. Let me first complete this 1023C and let me compare 1023C with 12 and then we will take question. Done. Let me complete 1023C and 12A, then I will take question, then I will proceed further. Wait. Done. Please. Now, section 1023C, 3IA, B or C कर दिया था, AD, and 3IAE. Income of a university or educational institution not for making profit but for imparting education whose gross receipts does not exceed 1 crore. आता है आपको, मैं बता रहा हूं, लेकिन सेक्शन नहीं पता. Does not exceed 1 crore. And then hospital or medical institution not for making profit but philanthropic purposes whose gross receipt does not exceed 1 crore. So this is section 1023C, 3IAD. Next is 3IA, AE. Now section IV and V. IV is notified charitable institution. कुछ गवर्नमेंट ने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नोटिफाई कर दिए थे, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जैसे बिरला मंदिर, कुछ नोटिफाई किए हुए, तो वो 1023C में आ गए थे पहले चैरिटेबल. अब नहीं ना, सॉरी, बिरला मंदिर तो 1023C में नहीं आएगा, वो वी में आएगा. वी में आएगा. वी मीन्स रिलीजियस में आएगा. वी रिलीजियस में आते हैं और चैरिटी वाले चैरिटी वाले IV में आते हैं और रिलीजियस वाले वी में आते हैं. लेकिन कईयों को रिलीजियस नहीं कहा गया. वो कहते हैं ये रिलीजन तो करते ही नहीं है, ये तो सब जगह अलाउड है. ये तो गुरुद्वारा वाले क्या करते हैं, ये तो चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं और बड़ा कुछ करते हैं. मंदिर भी है, चलो उनका गुरुद्वारा, लेकिन मेनली तो चैरिटी करते हैं. तो उसको उन्होंने वाई फॉर्म में भी दे रखा है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको बारे में बात ही नहीं कर रहा. अब आया यूनिवर्सिटी एजुकेशन ग्रॉस रिसीट एक्सीड ₹1 करोड़. ये 1023C VI है. यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़, ये VIA है. पहले तो मैंने 1023C करा दिया. पहले वाला सब्सटेंशियली होली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, इनकम माफ. दूसरा भूल गया, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो भी इनकम माफ है, कोई कंडीशन नहीं है उसमें भी, सिर्फ रिटर्न मैंडेटरी है. जो 1 करोड़ से कम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, लेट मी टेल यू, टोटली इनकम एग्जेम्प्ट. नो 85, नो ऑडिट, नथिंग. बट ये ऑडिट अंडर इनकम टैक्स आई एम टॉकिंग.
ऑडिट अंडर देयर रिस्पेक्टिव एक्ट, सोसाइटी एक्ट में ऑडिट हो या ट्रस्ट एक्ट में ऑडिट हो, वो नहीं मैं कह रहा. अंडर इनकम टैक्स नो ऑडिट. एंड प्लीज, their income is totally exempt but mandatory to file return. अब आ गया VI और VIA exceeding 1 crore. रुकिए, अब एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ 12AA में भी आता है. You can claim exemption under 1112. You can claim exemption in 1023C. तो क्या फर्क है? देखिए, 1023C में अप्रूवल होती है. You have to apply for approval, and the form for applying approval is 56D. 56D में अप्रूवल अप्लाई करते हैं और वो अप्लाई उसी को करना है, CIT exemption. You apply approval under 56D, you are granted approval. इसे रजिस्ट्रेशन नहीं कहते, अप्रूवल कहते हैं. फर्क क्या है मैं बताऊंगा. If you apply, these college, these medical institutions who are under VI and VIA can also apply for registration and in form number 10A as per section 12A, और उनको रजिस्ट्रेशन मिलती है. और आजकल नए साल से तो 12A भी हो गया, पहले 12AA था. सो यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, वो फॉर्म 10A में है, ये अप्रूवल है 56D में है. आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, क्या है, इधर अप्रूवल है इधर रजिस्ट्रेशन है. मैं बता रहा हूं, सुनिए. When you file, when you get registration, उस केस में क्या होता है, when a case comes for scrutiny, आपका scrutiny में केस आ गया, AO is making an assessment. AO will look into the objects. AO will see whether you are following the objects or not. If you are misusing the object, if you are not following the object, or you are misusing the fund, or you are not carrying out the for which you are formed, उस केस में AO can deny exemption to you under 11 and 12. AO can deny. AO कह देगा मैं नहीं देता, ठीक है, नहीं देगा, उसके बाद अपील फाइल कर सकते हैं कमिश्नर अपील को, उसके ऑर्डर में तो वो एग्जेम्पशन नहीं देगा अंडर सेक्शन 11-12. लेकिन रुकिए, इफ यू हैव गॉट अप्रूवल अंडर 1023C, केस स्क्रूटनी में आ गया, एओ के पास अब प्रॉब्लम है. अगर एओ ने अप्रूवल एग्जेम्पशन नहीं देनी तो वो himself, he cannot do himself. He will have to prepare a report, send this report to the authority who had given this approval, telling him that these are misused, या ये काम ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहे या मिसयूज ऑफ फंड कर रहे हैं, काइंडली विथड्रॉ देयर अप्रूवल. ये लिख के जाएगा, काइंडली विथड्रॉ देयर अप्रूवल टू कमिश्नर एग्जेम्पशन. फिर कमिश्नर एग्जेम्पशन विल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसी, और वो जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके बाद Commissioner of Income Tax Exemption will decide whether to withdraw the approval or not to withdraw the approval. If the commissioner does not withdraw the approval, तो AO को exemption देनी ही पड़ेगी 1023C में. वो ये नहीं कह सकता मैं नहीं दूंगा. अगर withdraw approval हो गई तो फिर AO exemption नहीं देगा अंडर 1023C. ये है सर पहला फर्क 1023C और ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में प्रोवाइजो दे रखा है. प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, इफ द AO डज नॉट वांट टू गिव एग्जेम्पशन टू द ट्रस्ट अंडर 1023C, he will have to send refer the case to the Commissioner of Income Tax Exemption to withdraw that approval, and then only if the approval is withdrawn he will not get it. This is first change. Second change, ये मैं 31/20 तक बता रहा हूं, आगे ये चेंज करवा दिया मैंने. लेकिन सेकंड चेंज क्या है, इन द केस ऑफ 1023C, corpus donations are not exempt. That is, if there is a voluntary contribution with a specific direction that it will form part of the corpus of the trust, it is not exempt, meaning thereby you will have to spend 85% for charity and you can accumulate only 15%. Only 15%. But in the case of section 11 and 12, if you are registered under 12AA, or now it will be 12AB, the corpus donation is exempt under 11 subsection 1 clause D, meaning thereby you need not spend this amount. There is a specific direction that it is forming part of the corpus. You need not spend this amount. This is allowed to you as exemption
देयर इज नो नीड ऑफ अप्लाइंग 85%, ये लॉ है। लेकिन रुकिए, अब मैं इसको क्लियर यहीं कर दूं, 1 अप्रैल 2020 के बाद, क्योंकि आपको दोनों रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं मिलनी, मैं बताऊंगा, एक ही मिलनी है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो उन्होंने अब एक एक्सप्लेनेशन डाल दी है अंडर प्रोवाइजो टू 1023C from 1st April 2020, stating that corpus donation shall also be exempt under 1023C. You need not spend that. It will be exempt like 11(1)D. पहले नहीं था, 1 अप्रैल 20 के बाद हो गया है, अगले साल से है, पिछले साल तक नहीं था। ये मैं आपको बता दूं, ये दूसरा चेंज है, दूसरा डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस, अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 देयर इज एन एक्सप्लेनेशन 2, जिसमें लिखा हुआ है दैट सपोज देयर इज एन इनकम which has not been received by you, but you have already accounted for it, it has not been received by you. जब रिसीव हुई नहीं तो खर्च कैसे करें? तो उन्होंने क्या लिखा है, you can give an undertaking under form 9A, give undertaking in form 9A before the due date of return under 139(1) that this is the income which is not yet received, but because I am following mercantile system, I have taken into account. Kindly allow me, there is a rule that I can spend this income in the year when it is actually received it or year following that also. Suppose मैंने एक FDR बनवाई 5 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल इनकम ड्यू हो गई, TDS भी कट गया होगा या नहीं कटा, वो तो ड्यू हो गई, आपने इनकम ले ली, बट स्पेंड कहां से करूं, पैसे तो आए नहीं। गिवन अंडरटेकिंग इन फॉर्म 9A that this is an income which is received and which is due but not received, and there is a compound FDR for 5 years, I will give an undertaking, I'll apply this income in the 5th year when the FDR matures or year following that, that is 6th year. तो उस केस में ये डीम्ड एप्लीकेशन इसी साल का मान लिया जाता है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर 6th ईयर में खर्च नहीं करेंगे तो उस साल जितना नहीं किया वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। ये आपको बता दिया गया, ये अलाउड है एक्सप्लेनेशन 1 में, एक्सप्लेनेशन में अंडर 11(1) में। एक और क्लॉज भी है, एक और एक्सप्लेनेशन इसी के साथ है, दैट फॉर एनी अदर रीजन, ये रीजन तो 1 था, फॉर एनी अदर रीजन यू कुड नॉट स्पेंड दैट इनकम। हो सकता है 29 मार्च को आया, आजकल तो कोविड है, 20 मार्च को आया, तो आप लिख के दे दीजिए आई विल स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर। ये भी फॉर्म 9A भरिए, रीजन बता दीजिए, आई विल स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर। आपको डीम्ड एप्लीकेशन इस साल की मानकर आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, आप नेक्स्ट ईयर खर्च कर दीजिए, अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर की इनकम मान ली जाए। ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है जो फॉर्म 9 भरा जाता है, दिस इज नॉट देयर इन 1023C। 1023C में नहीं है। तो इवन इफ द इनकम, अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इनकम इज नॉट रिसीव्ड, तो भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो वो डीम्ड एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ 11 में है। इसी तरह यू कांट से आई विल स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर, ऐसे अंडरटेकिंग नहीं दे सकते। ये तो अभी भी नहीं है, जो आगे जो लॉ आया है। एक और 1023C में आप 11-12 में आप जो रिपोर्ट देते हैं ऑडिट रिपोर्ट, इट इज इन 10B। 1023C में जो ऑडिट रिपोर्ट देते हैं इन फॉर्म नंबर 10BB होता है, डबल बी होता है। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन 1023C और 12AA। और सुना दूं पहले, अब आगे से, अब लूंगा क्वेश्चन, लेकिन रुकिए, आगे से हमने ही कहा था जब मैंने लॉ बनाया इनकम टैक्स का नया, क्योंकि हमने बना दिया है, दे दिया हुआ है कि सर कई ट्रस्ट रजिस्टर्ड है या अप्रूव्ड है 40 इयर्स बैक, 30 इयर्स बैक, 50 इयर्स बैक, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या अप्रूवल नंबर तो दे हैव इट, बट दे डू नॉट हैव द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल। और जब हम असेसमेंट के लिए जाते हैं, AO आस्क फॉर सर्टिफिकेट, वी से वी डोंट हैव। अब हमने कहा कि अपने यहाँ फाइल देख लो, उनके पास भी नहीं। तो एक काम करिए, सब जितने भी ट्रस्ट, प्लीज मेरी बात सुन लेना,
whichever trust who are registered under 12AA or who are approved under 1023C, they all will have to apply once again. सबको अप्लाई करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फॉर री रजिस्ट्रेशन और री अप्रूवल in a simplified form to be notified by 31st August. सबके सबको अप्लाई करना है. मुझे बाद में नहीं कहना कि सर भूल गए तो क्या होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी. री डी रजिस्टर हो जाओ. मैं पहले बोल रहा हूं, हर चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 11-12 में रिलीजियस भी आते हैं, जितने भी हैं या जो 1023C में आ रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्लीज यू हैव टू अप्लाई अगेन in a simplified form. Last date 31st August. In a simplified form to be notified. अप्लाई कर देना, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको यूनिक आईडी मिल जाएगा, आप दोबारा री रजिस्टर अप्रूव्ड हो गए. हमने तो इतना ही बोला था, लेकिन वो आगे बढ़ गए. वो कहने लगे रुकिए, ये अब रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. ये 5 साल तक वैलिड होगी. And you will have to go for renewal of this registration approval at least 6 months before the expiry of 5 years. 4.5 साल से पहले दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा. हर बार रिन्यूअल के लिए करना पड़ेगा. एक और बात कह दी कि देखिए, अगर आपके पास दोनों हैं 1023C और 12AA, तो प्लीज आप एक ही में अब रह सकते हैं. अब दोनों नहीं मिलेंगे. अब कईयों के पास दोनों थे, वो कभी 1023 यूज करते थे, कभी 12AA में चले जाते. जी नहीं, जब आप री अप्लाई करेंगे एक ही, आइदर 1023C, 12AA. मैंने बता भी दिया दोनों में डिफरेंस क्या है. सिर्फ एक ही रह गया एक्सप्लेनेशन वाला कि अगले साल खर्च करूंगा या रिसीव नहीं हुआ, बाकी तो कॉर्पस वहां भी माफ है, वहां भी कर दीजिए एक ही एप्लीकेशन दोबारा. और अगर बाई चांस आपने इस बार गलती कर दी, अप्लाई कर दिया, तो आप फिर दोबारा जाकर दूसरे में अप्लाई कर देना, ये सरेंडर कर देना, लेकिन डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा. एक ही में मिलेगी, या अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन मिलेगी, और वो 31 अगस्त तक देख लेना. ये मैंने एग्जिस्टिंग का बताया. एग्जिस्टिंग जो चाहे 1 महीना पहले उनको अप्रूवल मिल गई है, तो भी उनको करना पड़ेगा. मैं यहां रुक रहा हूं और अब क्वेश्चन लेता हूं. जो भी क्वेश्चन आपके हैं आइए दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. आइए, विजय जी आ रहे हैं या कोई कौन बोल रहा है सर? हाँ, when a section 8 company can apply for section 12A, in my case section 8 company registered in the financial year 1920. मैं कह रहा हूं 1 महीना पहले भी रजिस्टर हुआ है, तो भी आपको दोबारा अप्लाई करना ही पड़ेगा. दोबारा सबको 31 अगस्त तक करना ही करना है. For educational institution having gross assets less than ₹1 crore, registration is compulsory. जी नहीं, अगर 12A में जाना चाहते हैं, 11-12 का लेना चाहते हैं तो कंपलसरी है. अगर 1023C में रहना चाहते हैं तो कोई जरूरत ही नहीं. वो तो 1 करोड़ से कम वाले माफ है, उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है. उसके लिए सिर्फ रिटर्न भरनी है. लेकिन आपके पास कोई एजुकेशन का वो होना चाहिए, कोर्स. नहीं है कि ऐसे ही बना लिया, कोई रिकॉग्नाइज कोर्स कर रहे हैं, 1 करोड़ से कम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेना अप्रूवल नहीं है. व्हाट रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन पब्लिक? अभी शुरू नहीं हुआ, रेट ऑफ टैक्स पहले ही पूछने लग गए यार. सर रेट ऑफ टैक्स है जो स्लैब रेट है इनकम टैक्स का, जो इंडिविजुअल के लिए लगता है वही रेट ऑफ टैक्स है. संदीप कुमार, चलिए आगे. व्हाट इज द बेनिफिशियल अकाउंटिंग सिस्टम फॉर एनजीओ वेदर कैश और एक्रूवल? देखिए, सेक्शन 8 कंपनी को तो लेना ही एक्रूवल पड़ता है, वो तो कर ही नहीं सकते कंपनी में. तो बाकियों की मर्जी है, कैश रखिए या अप्रूवल रखिए, वो आपकी मर्जी है, वो कोई मना नहीं करता. सर वेदर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रेच्युटी ट्रस्ट? सर ग्रेच्युटी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, अप्रूवल होती है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट, अगर आप ग्रेच्युटी ट्रस्ट बनाते हैं, अगर LIC का लेते हैं, फिर भी आप कमिश्नर को अप्लाई करते हैं फॉर अप्रूवल और वो दे देते हैं. इसकी कोई रिटर्न नहीं जाती है, लेकिन आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है. सर कैन द पेरेंट ट्रस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर 12A एंड कॉलेज रन बाय इट अंडर 1023C? अगर सेपरेट पैन नंबर है तो पॉसिबल है, सेपरेट पैन नंबर है तो पॉसिबल है. एक पैन नंबर वाला 1023C ले ले, मेन ट्रस्ट 12AA ले ले, कोई मना नहीं है, बट पैन सेपरेट होना चाहिए. व्हाट विल द पोजीशन इफ FDR इज रिन्यूड? जी नहीं, रिन्यूड तो आपने अपनी मर्जी से कराई है ना, वो बाद में उसके लिए अलग आएगा.
वो तो 5 साल बाद रिन्यू हो गई तो अप्लाई करना ही करना है, रिन्यू अपनी मर्जी से कराइए, ये नहीं है परमानेंट रिन्यू कराते रहो और कहो जी मैंने डीम्ड एप्लीकेशन हो गया, ये नहीं होता। शुड ए सोसाइटी रजिस्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाउसिंग से अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? क्या बातें करते हो यार, मेंटेनेंस सोसाइटी तो म्यूचुअल सोसाइटी होती है, उसकी तो कोई रिटर्न में नहीं जाती है, वो तो कोई रजिस्ट्रेशन का मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर उसकी इनकम मोर देन आउटसाइड अदर देन मेंबर से 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो वो फिर रिटर्न भरते हैं, नहीं तो म्यूचुअल एसोसिएशन है, कोई सोसाइटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। कैन कंडोनेट डिले एप्लीकेशन फाइल फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10? देन हाउ? अब तो अलाउड ही नहीं है कंडोनेशन ऑफ डिले इन फॉर्म 10 में। अरे भूल जा, अब तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक फॉर्म 10 भर दो, नहीं और रिटर्न भी साथ में भर दो ड्यू डेट तक, नहीं तो 10 रिजेक्ट हो जाएगा। कोई कंडोनेशन ही हो, जमाने चले गए कंडोनेशन के, नहीं है, आप मारे जाओगे, 10(11)(2) नहीं मिलेगा। There are certain trusts on whose registration it is mentioned registered under 12A. Section 12AA is nowhere. सर पहले 12A में ही रजिस्ट्रेशन होती थी, पुराने जितने भी ट्रस्ट हैं, अब 12AA में होती है और अगले साल से तो 12A भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले रजिस्ट्रेशन होती 12A में थी, 12AA सेक्शन था ही नहीं, वो तो बाद में आया था, और उसके बाद 12A भी अब आ गया, तो चिंता मत करिए। सर प्लीज शेयर योर ओपिनियन ऑन प्रपोजल टू इंक्रीज टैक्स सरचार्ज लेविड को। ये क्या ओपिनियन है भाई? ये IRS ऑफिसर मेरे अगेंस्ट भी एक्शन कराना चाहते हो? उनको तो सस्पेंड कर ही दिया उन्होंने, उनको तो सस्पेंड कर ही दिया है, और तो मेरे को ओपिनियन पूछ रहे हो? काइंडली एलिबरेट फाइलिंग ऑफ फॉर्म 9A 10। अरे 9A तेरे को बताया, जो सेक्शन 11(1) की एक्सप्लेनेशन है वो 9A होता है कि आई स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर और आई स्पेंड द ईयर ऑफ रिसीट और ईयर फॉलोइंग, उसको भी ड्यू डेट ऑफ 139(1) तक भर देना, नहीं तो नहीं मिलेगा वो बेनिफिट। और 10 भी ड्यू डेट तक भर देना। 10(11)(2) का होता है मोर देन 50% जो एक्यूमुलेट करोगे, मोर देन 15%, तब 10 भरना पड़ता है। 9A तो होता है अगले साल या ईयर ऑफ रिसीट और फॉलोइंग। एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड एट 12A ओनली, फॉर्म नंबर 10 filed for expenditure to be increased by 5 years. In this case it necessary to file form 9A। जी नहीं, 9A नहीं होता, 10 होता है। जब 5 साल के लिए एक्यूमुलेट करते हैं वो 11(2) में जाते हैं। फॉर्म 10 11(2) का है, फॉर्म 9A उसका है जो अगले साल खर्च करूंगा, या जो इनकम आई बट आई नहीं और मैं खर्च जब आएगी तब खर्च करूंगा। जी नहीं, जी नहीं। एजुकेशन is under 12A only, no approval under 10(23)(6). Now can we submit simplified form? जी नहीं। अब आपके पास तो जहां पर है उसी का तो रिन्यू कराओगे, वो करा के फिर बाद में चेंज कर देना, नहीं तो नया माना जाएगा आपकी। अगर आपने 10(23)(6) में अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप शिफ्ट कैसे कर सकते? आप पहले अप्लाई कर दो 12AA में, उसके बाद आप 12A डे सरेंडर करके 10(23)(6) में जा सकते हैं। विल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव फॉर कंसीडर इन 85%? बिल्कुल कंसीडर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव 85% में। चलिए अगला, ये तो सारे सवाल अगले भी पूछने लग गए। अरे जितना मैंने कराया उतना तो पूछ लो यार, आगे तो मैंने सवालों के सबके जवाब देने हैं, पूरा तो करने दो। सर एक क्वेश्चन जिसमें अप्रूवल फॉर ग्रेचुइटी ट्रस्ट रिक्वायर्ड होता है, क्या दैट अप्रूवल कैन बी विड्रॉन? ग्रेचुइटी ट्रस्ट का मेरा अप्रूवल ले रखा है। सुन लीजिए, पहला पॉइंट ये है, ग्रेचुइटी ट्रस्ट या तो अपना बनाना पड़ता है, या आप LIC का ले सकते हैं। LIC का ले लो हो तो आपके सारे फॉर्म भर के कमिश्नर को दे दो, उसको डीम्ड अप्रूवल ही कह देते हैं, दे ना दे जवाब। एक अपना अप्रूवल कराना पड़ता है, अपना करा रखा है, अब अपना करा रखा है। अब सवाल आता है, आपको रिटर्न तो भरनी नहीं, इसकी रिटर्न के लिए कोई सेक्शन नहीं है। 139(4)(C) में 1025 नहीं लिखा हुआ। अगर 129(4)(C) अगर आपके पास एक्ट है ना सामने, तो उसमें पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कौन कौन से सेक्शन की रिटर्न भरनी है। तो वहां भरने के लिए लिखा नहीं है, लेकिन कोई आपने मिसयूज किया, कई इंफॉर्मेशन आ गई, कोई कंप्लेंट आ गई, कोई उनके पास आ गया, तो फिर वो शो कॉज देकर अप्रूवल विड्रॉ कर सकते हैं। दे कैन डू, बिकॉज उसकी सारी कंडीशंस हैं। लेकिन सर उसमें काफी सर्कुलर्स मैंने पढ़े, गाइडलाइन कि कमिश्नर जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी बंद करने का प्रोविजन नहीं, बट कंपनी वांट्स टू चेंज दी सिस्टम कि भाई जब लाइबिलिटी डी होगी हम जब पे कर देंगे, बट वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दी ग्रेचुइटी ट्रस्ट। देखिए मेरी बात, ये रिकॉग्नाइज्ड है, ये अप्रूव्ड है ग्रेचुइटी ट्रस्ट। इसका मतलब है आप उसकी कंडीशन सेटिस्फाई ना करें तो वो अप्रूव नहीं कर सकते। आप पैसा विड्रॉ करना है, LIC या HDFC से मैं पैसा विड्रॉ भी करना है। की बात नहीं कर रहा मैं, विड्रॉ की बात नहीं कर रहा।
विड्रॉ की बात नहीं कर रहा, आपका अप्रूवल कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? फर्क क्या है? ग्रेच्युटी ट्रस्ट में अगर अप्रूवल नहीं है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलती जो कंट्रीब्यूशन करते हैं ग्रेच्युटी ट्रस्ट में। अगर वो अप्रूवल विड्रॉ कर लेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी जो इनकम टैक्स में मिलती है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 जो उसमें ग्रेच्युटी ट्रस्ट की है। तो वो उसकी पैसा बात भी तो कंपनी, वो तो सर पैसा भी कंपनी के पास ही ना, इसलिए देन देयर इज नो नीड, इसलिए प्लानिंग चेंज करना चाह रही थी कंपनी। सर पहला पॉइंट है कंपनी के पास पैसा है, दे आर ट्रस्टी, कंपनी नहीं है, ट्रस्टी है, ट्रस्टी बने हुए हैं उसको, कंपनी कोई नहीं है उसका मालिक, वो ट्रस्टी है मालिक, ट्रस्टी होते हैं, कंपनी इसका कोई लेना देना नहीं है, दे आर आउटसाइड, उसका कोई कंपनी से एक मिनट का भी लिंक नहीं है, दे हैव नो लिंकेज विद द कंपनी, दिस इज ट्रस्टी एंड ट्रस्टी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर डूइंग दैट। नो नो नो, कंपनी और ट्रस्टी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। Draft as CSR policy 220 has excluded registered society and trust for executing CSR project. What do you think? या ये think वाले सवाल आज मत करो, ये हमको क्वेश्चन दे रहे हैं जो हमारा आपके समझना है, ये think करता रहूंगा तो ये डिस्कशन चलता रहेगा। कोई भी ऐसा सवाल है जो अभी तक मैंने कराया वो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी आगे बोलूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ सर, हमने काफी क्वेश्चंस लिए सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए yes. अब देखिए, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट ये हो गया जो मैंने आपको बताया दोनों का डिफरेंस क्या है, और ये मैंने बताया 31 अगस्त तक सबको पहले अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट री रजिस्ट्रेशन और री रिन्यूअल। अब मैं बता दूं 11-12 में दो तरह के आते हैं, चैरिटेबल भी आते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। रिलीजन तो होता ही रिलीजन के लिए, और चैरिटी मैंने एक्सप्लेन आपको कर दी, और कई बार ट्रस्ट पार्टली चैरिटेबल और पार्टली रिलीजियस भी होते हैं। अब आगे बढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ रहा हूं। अब आप एक सवाल पूछा जाता है मेरे से कि सर जो 15% हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, दोनों में अलाउड है, सेक्शन 1023C में भी और 11-12 भी। अगर 15% जो हमने एक्यूमुलेट करना है सर, तो उस केस में 15% ग्रॉस रिसीट्स का लेना है कि नेट इनकम का लेना है, क्योंकि फिर रीड द सेक्शन लिखा है 15% ऑफ द इनकम। बहुत डिस्प्यूट हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ डिस्प्यूट इन द इंस्टीट्यूट आल्सो कि ये 15% इनकम का लेना है कि ग्रॉस रिसीट का लेना है, और मैं हमेशा कहता था वर्ड इनकम है, इनकम मींस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग दैट इनकम, दैट इनकम। ठीक है, डोनेशन के लिए कोई खर्चा नहीं होता तो डोनेशन का तो 15 ले सकते हो, लेकिन बाकी जो इनकम है उसके खर्चे के बाद ही 15% ले, ये मैं कहता था, और ये रगड़ा चलता रहा, और फॉर्म 7 में भी कुछ नहीं था। लेकिन रुकिए, मैंने फॉर्म 7 अब चेंज करवा दिया है, और फॉर्म 7 में अब क्लियर कर दिया 15% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स। तो आपकी जान छूट गई, क्योंकि नोटिफाइड है, और जब नोटिफाइड है तो इट इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट। सो 15% ऑफ द ग्रॉस रिसीट बिल्कुल आप ले सकते हैं, 15% ऑफ द ग्रॉस रिसीट ये अलाउड होगा। पहला पॉइंट बोला 15% ग्रॉस रिसीट का कर सकते हैं। अब आपने 15 से ज्यादा एक्यूमुलेट करना है, 1023C में भी है और 11-12 में भी है। इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट देन गो टू 11-2। 11-2 में लिखा है यू हैव टू फिल अप फॉर्म नंबर 10 giving the details for the fund to be accumulated and the period for which you want to accumulate. The maximum period will be 5 years, but you will have to give the object for which you are going to use that money and tell us for how many years you want. People normally say 5 years. Yeah. And please note, form 10 has to be furnished on or before that. पहले तो कभी भी कर सकते थे, लेकिन 3 साल से आ गया, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1) तक भर दीजिए, एंड ऑल्सो फाइल द रिटर्न बिफोर ड्यू डेट अंडर 139(1), नहीं तो 11-2 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 11-2 में जो एक्यूमुलेट किया वो हम अलाउ नहीं करेंगे, जो मोर देन 15% वाला है, करेंगे ही नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फॉर्म 10 भी भरना है ड्यू डेट से पहले, और रिटर्न भी भरनी है ड्यू डेट से पहले। अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन दोनों ड्यू डेट से पहले कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आप 15% एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकते, ना उसमें
नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, कई पॉइंट मैं बता रहा हूं, इशू ले रहा हूं क्योंकि आप रोज चैरिटेबल ट्रस्ट करते हो, लेकिन बहुत इश्यूज है इसमें। पहला इशू, कैपिटल एक्सपेंडिचर एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है। जब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एप्लीकेशन कर दिया तो आप डेप्रीशिएशन नहीं ले सकते, यू कैन नॉट चार्ज डेप्रीशिएशन। लेकिन अगर आप उसको एप्लीकेशन नहीं मानना चाहते तो फिर आप डेप्रीशिएशन ले सकते हैं। नॉर्मली लोग एप्लीकेशन मान लेते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे तो डेप्रीशिएशन मिलेगी, और मान लिया तो डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगी, चाहे कुछ कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, अब जरा ध्यान से सुनना, प्लीज जरा ध्यान से सुनना। मैंने एक लोन लिया, मैं एक बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपया है। बिल्डिंग इज वर्थ 3 करोड़, सो आई बोरोड मनी फ्रॉम बैंक 2 crore, or anybody I borrowed 2 crore. So total I invested 3 crore in the building. The question is, what is my application of this year? Answer is only 1 crore, because loan is not an income. तो आपने उसको अप्लाई किया है, वो इनकम नहीं है। आपने लोन को अप्लाई किया, वो इनकम नहीं है, तो इसलिए वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। 1 करोड़, बैलेंस शीट में अलग बात है, बैलेंस शीट में 3 करोड़ एसेट साइड में आएगा, 2 करोड़ लायबिलिटी में आ जाएगा, ऑल इज ओके, बट एप्लीकेशन 1 करोड़ मानी जाएगी। एंड व्हेन यू रिटर्न द लोन एंड ऑल्सो यू पे इंटरेस्ट व्हेन एवर यू पे, वो अमाउंट एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? एप्लीकेशन कब माना जाएगा? जब लोन रीपेमेंट होगी और इंटरेस्ट जब देंगे। जब तक रीपेमेंट नहीं होगी आप एप्लीकेशन नहीं कह सकते। अकाउंटेंसी में जो मर्जी कहिए, इनकम टैक्स में 1 लाख एप्लीकेशन है, बाकी जब जब लोन रीपे करेंगे, इंटरेस्ट रीपे करेंगे, हम आपको दे देंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब मैं और आ रहा हूं, अब नई चीज लेके आ रहा हूं। देखिए, इस साल मेरी रिसीट थी 2 करोड़, लेकिन मैंने खर्च कर दिया 2 करोड़ 50 लाख। 50 मेरे पास था, कैपिटल फंड में था, बैंक में पड़ा कैपिटल फंड में था, मैंने 50 खर्च कर दिया, 250। अब सवाल आया, एप्लीकेशन इज मोर देन द रिसीट्स। द क्वेश्चन आता है, कैन दिस एक्सेस एप्लीकेशन बी ट्रीटेड एज डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर? अगले साल की मैं डीम्ड एप्ली या फ्यूचर ईयर की डीम्ड एप्लीकेशन मान सकता हूं? जजमेंट तो बहुत थी, हाई कोर्ट्स की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम महाराणा मेवाड़ 164 ITR, बड़ी पुरानी जजमेंट महाराणा मेवाड़ की गुजरात हाई कोर्ट की थी। कई जजमेंट आई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, गुजराती समाज रजिस्टर्ड, रघुवंशी चैरिटेबल ट्रस्ट, मातृ सेवा ट्रस्ट, बहुत जजमेंट है जो कहता है अगले साल की एप्लीकेशन मान ली जाएगी। लेकिन रुकिए, सब हाई कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट की कोई नहीं थी, तो डिपार्टमेंट मानता नहीं था, कहता नो क्वेश्चन, वी विल नॉट गो। और ना ही आपके फॉर्म में कहीं लिखा है कि अगले साल का एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। भरेंगे कैसे? फॉर्म में तो कुछ लिखा ही नहीं। हम बार बार कहते थे, हम कहते थे 10B में डाल दो, नीचे नोट दे दो, लेकिन हाई कोर्ट होगा, लेकिन फॉर्म में तो डिटेल तो दे ही नहीं सकते थे, 10B में दे सकते थे। अब एक जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की, सुब्रोज एजुकेशनल सोसाइटी, SUBROS, सुब्रोज एजुकेशनल सोसाइटी, उसमें वो SLP फाइल करी गई थी, डिपार्टमेंट ने करी थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी और कह दिया कि हम इसके ऊपर जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए ये अगले साल की एप्लीकेशन मानी जाएगी। ये तो हो गया, तो अब डिपार्टमेंट को चाहिए कि फॉर्म में ये कॉलम डाल दें, फॉर्म 7 में। अभी तक डाला नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो डालें, लेकिन ये लॉ अलाउ कर दिया गया है, दिस विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर। अभी डिस्प्यूट है, लेकिन अगला कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आ गया तो उनको मानना पड़ेगा। आइए, अगर रिव्यू पिटीशन फाइल कर दें तो बात अलग है, अदरवाइज तो मानना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, 2 इंपॉर्टेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो है ना सेक्शन 40AI and 40A3, 40AI of TDS, 30% will be disallowed if TDS is not deducted. 40A3, if the payment exceed rupees 10,000, it should be by way of account paid check or account paid draft or electronic clearing system. ये ऐसे तो बिजनेस चैप्टर के, तो चैरिटी वाले को लगना नहीं चाहिए. लेकिन रुकिए, अब उन्होंने क्या कहा है? The section 40AIA and 40A subsection 3 shall mutatis putandis will also apply to charitable and religious trust. Meaning thereby, if the charitable trust do not deduct the TDS as deductible, then 30% of that amount which you have paid shall be not treated as application. वो application माना ही नहीं जाएगा इस साल का. And secondly, if you make a payment in a single day exceeding rupees 10,000, and if it is not by way account paid check, account paid draft or electronic clearing system, then that amount will not be treated as application of income. ये लॉ ने क्लियर कर दिया है, हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे. तो बी केयरफुल अबाउट दैट. अगला पॉइंट देखिए, कुछ इनकम सेक्शन 10 में माफ होती है. सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम माफ है. सेक्शन 10(34) में, अब तो नहीं है, शेयर की इनकम माफ होती थी. और भी सेक्शन है, माफ है. अब सवाल आया, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है which has income, certain income which are exempt under section 10. अगर वो exempt है तो there is any need to apply. क्या मैं अप्लाई करना जरूरी है 85 और 15 accumulate करना? Or I may not apply that. Law has made it clear that except agricultural income which is covered under 10(1), which is covered under 10(1), you will have to apply that income. It will not be treated as exemption under section 10. आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा 85 और 15 accumulate कर सकते हैं. आप इसको exemption 10 में नहीं ले सकते सिवाय 10(1) के, एग्रीकल्चर इनकम के. ये भी क्लियर कर दिया गया. अगला पॉइंट, मेरे पास, मैं ट्रस्ट रजिस्टर्ड हूं. I want to give donation to another trust. Can I give? Answer is yes. You can make donation to another trust, but out of only current income. Accumulated income की donation नहीं दे सकते. Only current income की आप donation दे सकते हैं. लेकिन रुकिए, अब एक और condition आ गई. When a charitable trust gives donation to another charitable trust, it cannot give donation for as corpus donation. He cannot say that I am giving this donation for the corpus of the other trust. अगर corpus के लिए देगा तो इस trust को जो donation दी वो application नहीं माना जाएगा. पहले it should be out of current income, and secondly it should not be for the corpus of other trust. लोग misuse करते थे. यहाँ से application ले ली, वहाँ corpus के लिए आ गया, they used to take exemption as corpus donation. मना कर दिया. जी नहीं, कॉर्पस नहीं माना जाएगा. आप कॉर्पस के लिए देंगे तो आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा. उसका कॉर्पस माना जाए लेकिन आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाए. ये भी क्लियर कर दिया. एंड यू कैन पे ओनली आउट ऑफ करंट इनकम. ये भी आ गया. अगला पॉइंट ध्यान से सुनते रहिए. मैंने आपको बोला कि आपको दोनों एक्सपेंडिचर अलाउड है, कैपिटल भी रेवेन्यू. लेकिन अब आता हूं कि कैन ए ट्रस्ट डू एनी कमर्शियल एक्टिविटी, any commercial, can it carry on any business, trade, commerce? Wait a minute. सवाल ये है, if you are covered under section what you call 11, 12, if you are registered as relief to the poor, if you are registered as education, if you are registered as medical relief or for yoga, for prevention of environment, preservation of environment, or preservation of monument, etc. Up to this, not advancement of other, not advancement. If you are registered here, you can carry on any business, provided that business trade is incidental to the attainment of the objective of the trust and separate accounts have been maintained for that business. सुन लीजिए मैंने क्या कहा, 11(4)A करा रहा हूं.
अगर मैं आई एम रजिस्टर्ड अंडर 11 12 आई एम टेकिंग एग्जम्पशन अंडर 11 12, but my registration is as relief to the poor, my relation is as education or yoga or medical relief or preservation of environment, etc., or preservation of monument, etc., I can definitely do trade, commerce, or business, provided it is incidental to the attainment of the objective of the trust, and separate accounts have been maintained for that trust. And please note, अगर उसकी 1 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि वो कमर्शियल एक्टिविटी थी, तो टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ सकता है. टैक्स ऑडिट नहीं कराएंगे तो पेनल्टी है, लेकिन ट्रस्ट को मैंने बोल दिया इंसिडेंटल एक्टिविटी कर सकता है. उसमें क्या होगा, आप सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और सेपरेट खर्चे देखकर इनकम निकालकर जो सरप्लस है उसको फिर अप्लाई करेंगे. 85 and 50 सरप्लस को 85 50 लेना है. बट यू कैन डू, बट वेट, if you are registered under advancement of any other object of general public utility, kindly note, if you are carrying on any trade, commerce, or business, or rendering services to any trade, commerce, or business, whether for any fee or a consideration or any remuneration, then in that case it will not be called a charitable purpose. वो कहता है ये charitable purpose नहीं माना जाएगा. But रुकिए, however, if the gross receipt from such commercial activity does not exceed 20% of the total receipts, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा. यू कैन कंटिन्यू विद दैट 20%. लेकिन ये उसी के लिए है, दोज हु आर रजिस्टर्ड अंडर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. बाकियों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए नहीं है. इवन 1023C में भी वो तो एजुकेशनल है, वो तो मेडिकल है, वो भी कर सकते हैं. एक कॉलेज है, एक स्कूल है, स्कूल कैंटीन चला रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म सेल करता है, स्कूल सेल्स बुक्स, schools runs hostel, school runs transport. They are all incidental activity for the attainment of the objective of the trust. They can do this activity provided separate accounts have been maintained for this activity, and if it is more than that, वो तो बात की बात है, ऑडिट है या नहीं, वो ये कर सकते हैं. ये मैंने आपको बताया, incidental activity can be done by the trust. आगे बढ़ते हैं. अनोनिमस डोनेशन, ये क्या है? देखिए, अब लॉ बन गया है कि जो डोनेशन आपको आए उसके लिए आपको नेम एड्रेस देना है. अब तो पैन नंबर भी देना होगा. अभी बताता हूं, अब तो पैन भी देना होगा, नहीं तो वो अनोनिमस माना जाए. तो क्या अनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल है? सुनिए, सेक्शन 115 BBC में लिखा है, where the total income of a trust or other institution includes anonymous donation, meaning thereby you don't have the name, address, and now the PAN number also of that person, receives anonymous donation, then such anonymous donation shall be taxable at a rate of maximum marginal rate, that is at 30% of an amount of the anonymous donation exceeding 5% of the total donation or 1 lakh, whichever is higher. Meaning thereby, if the anonymous donation are up to 1 lakh or 5% of the total donation, no problem. You spend it, you do whatever you like, or you are 85 or 15, that is there. But if the anonymous donation without giving name, address, PAN is more than 5% of the total donation or 1 lakh, whichever is higher, then the balance amount shall be taxable at the rate of 30%, that is the maximum marginal rate. ये 115 BBC में लिखा है. लेकिन रुकिए, this anonymous donation is the case meant for charitable institutions. Those who are charitable cannot receive anonymous donation more than that amount. Charitable. But religious institutions are exempt, क्योंकि भगवान को तो आता ही नंबर 2 का दान ज्यादा है.
गुप्त दान कहते हैं उसको, नंबर 2 का दान आता है। भगवान तो मिलता ही नंबर 2 का ज्यादा है, नंबर 1 का तो बहुत कम देते हैं लोग। कैसे आता है? भगवान कहते हैं पैसा कमाया जाता है नंबर 2 का, या जो भी गलत तरीके से कमाया जाता है, भगवान को कहते हैं ले भाई तेरा शेयर 2% या तेरा शेयर 5%, बाकी 95% या 98% जो मेरा बचा, प्लीज उसका ध्यान रखना, प्लीज उसके मेरे बारे में मेरा उसका प्रोटेक्ट करना, ले तेरा शेयर 5%। भगवान कहता है तथास्तु। भगवान कभी नहीं कुछ कहता, तथास्तु ही करता है। आप जब भी मर्जी दे लीजिए, शिव जी ने जब भी जिसको कहा तथास्तु कर दिया वरदान, चाहे वो वरदान अगेंस्ट ही जा रहा था, भगवान ने भी कह रहा तथास्तु। वो कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपने कहा मैंने मान। चोर भी चोरी करने जाता है तो वो भी मंदिर में होके आता है कई बार, भगवान आज चोरी करने जा रहा हूं, आज माल ज्यादा मिल जाए और मुझे कोई पकड़े भी ना। भगवान कहता है तथास्तु, वो तथास्तु कर देता, और फिर भगवान को दे आता है, ये लो तुम्हारा शेयर, पहले ही ले लो, एडवांस में ले लो। अरे हमारे तो सीए भगवान का तो काफी मिसयूज करते थे, भगवान क्रेडिट में भी काम कर देता है, इतना शरीफ है। कहते सीए पास करा दे, तेरे पास दर्शन करने हो। जब तक नहीं आता, जब पास हो जाता है तो दर्शन करने जाता है, फिर कहता है ले तेरे 1100 या 5000 या 11 जो भी तुमने सुने ले भैया। वो कहता है तथास्तु। हमारी लेडीज हैं, यंग लड़कियां हैं, वो तो और भी मिसयूज करती हैं कि भगवान मेरी शादी करा दे। 16 सोमवार के व्रत करके वो कहती शादी करा दे, भगवान कहता है तथास्तु, मैं तो करा दूंगा, भुगतना तो तूने है, मैंने थोड़ी भुगतना है, करा ले, कर ले, ले भैया तेरी शादी करा देता हूं। इसी तरह चोर को कह रहा है मुझे क्या करना है, मैंने तेरे को तथास्तु कर दिया, कर्मों का फल तो तूने लेना है, जो तेरे कर्म होंगे तू भुगतेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, तेरे कर्म तेरे आगे आएंगे और तू देखेगा। जो नंबर 2 का पैसा भगवान को दे आया था, भगवान ने तथास्तु कर दिया था, कहता इनकम टैक्स वाले आएंगे तो तू देखियो, मुझे क्या लेना देना, मेरे लिए तो तूने तथास्तु मांगा कि ले मेरा शेयर, ले तेरा आ गया, अब कर्मों का फल तो तूने ढूंढना है। मैंने कर्मों के लिए तो कुछ नहीं कहा, कर्म जो करेगा वो भरेगा, कि तो तेरी किस्मत में जो होगा, मैं कुछ नहीं, तेरी डेस्टिनी लिखी हुई है, वो तो लिख दी गई जब तू पैदा हुआ था, तो तू तो पकड़ा जाएगा, आज नहीं 10 साल बाद पकड़ा जाए उसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा। समझ में आया? तो इसलिए भगवान को तो मोस्टली अनोनिमस डोनेशन ही आती है, और अनोनिमस डोनेशन माफ होती है, भगवान के लिए माफ है। लेकिन भगवान को प्लीज देना, अनोनिमस डोनेशन आएगी, लेकिन कॉर्पस डोनेशन भगवान को तभी आ सकती है जब देयर इज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस। लेकिन कोई भी कॉर्पोरेट डोनेशन जब तक डायरेक्शन डोनर की नहीं आएगी वो माफ नहीं है, नाइदर अंडर 11(1)(d नॉर इट विल बी exempt फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इन 1023(c). डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम द डोनर। कहिए क्या लेटर लो, कई कहते हैं सर हमने रसीद छुपा रखी है। सर रसीद में कॉर्पोरेट डोनेशन लिखा रखा है, ये तो वैसे ही है जब मंदिरों ने गुल्लक के आगे लिख दिया है कॉर्पस डोनेशन। अरे लिखने से क्या होता है, डोनर को क्या पता कॉर्पस क्या है या नॉन कॉर्पस क्या है, डोनर ने तो चढ़ावा चढ़ा दिया, वो कॉर्पस नहीं मानी जाएगी। डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम डोनर। आपने रसीद छुपा ली, कॉर्पोरेट डोनेशन नहीं, आपको चाहिए जहां लिखा है कॉर्पोरेट डोनेशन उसके नीचे वो साइन कराइए डोनर के और वो लिख के दे यस, अगर वो लेटर नहीं देता तो। नहीं तो कॉर्पोरेट डोनेशन माफ नहीं है, उसका 85% स्पेंड करना पड़ेगा, 15 रोकना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बता, अनोनिमस डोनेशन रिलीजियस ट्रस्ट के लिए माफ है, मतलब वो उसके लिए कोई 115 बीबी से नहीं लगता। लेकिन पार्टली चैरिटेबल पार्टी रिलीजियस है, तो उस केस में अगर पैसा रिलीजियस के लिए आया है तो माफ है, अगर चैरिटी के लिए आया है तो आपको डेट वगैरह देनी है और अनोनिमस डोनेशन बतानी है। अब अनोनिमस डोनेशन के बारे में अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। नया जो लॉ आया है फाइनेंस एक्ट 2020, आपके पास अगर 80G का सर्टिफिकेट है, ऑलरेडी है, आपने अप्रूवल ले रखी है 80G की अप्रूवल, तो प्लीज नोट यू विल हैव टू अप्लाई फ्रेश बाय 31 अगस्त। दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन दोबारा अप्लाई करी, इसकी भी अप्रूवल दोबारा अप्लाई करिए। बाय विच डेट?
31 अगस्त, 31। और आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे और आपको अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन ये वैलिड अब परमानेंट नहीं होगी। दिस विल ऑल्सो बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। रुकिए, इस केस में भी एटलीस्ट 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 year आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। दूसरी बात, अगर आप आपके ATG नहीं है तो आप अप्लाई करेंगे तो अब आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगी, प्रोविजनल अप्रूवल मिलेगी, परमानेंट नहीं, प्रोविजनल। और वो प्रोविजनल वैलिड होगी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। उसके बाद परमानेंट देंगे। इसी तरह ट्रस्ट में भी कर दिया है। जो भी नए ट्रस्ट बनेंगे, जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या 1023C में फर्स्ट टाइम, प्लीज आप जब अप्लाई करेंगे यू विल नॉट गेट परमानेंट रजिस्ट्रेशन, यू विल गेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल अप्रूवल। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल अप्रूवल विल बी वैलिड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। 3 years, and it is written that if you have commenced the charitable activity, then within 6 months of the commencement, or within before the expiry of at least 6 months prior to the expiry of 3 years, you will have to apply for permanent registration। अगर चैरिटी शुरू नहीं करी तो 2.5 साल के बाद परमानेंट अप्लाई कर दो। चैरिटी शुरू कर दी है तो विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ चैरिटी आप सरेंडर कर दो प्रोविजनल और नया मिल जाएगा। लेकिन आपको पहले प्रोविजनल ही मिलेगा। अगर कोई एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन की, अभी मिला नहीं है, तो वो भी इसमें मर्ज हो जाएगा और आपको आगे से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलना है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलना ही नहीं है, ये भी बता। अब जब भी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है ना आगे से, अगले साल से, तो एटलीस्ट 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर करना है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पहले तो करना पड़ता था बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब 1 month बिफोर द कमेंसमेंट के लिए अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए या अप्रूवल के लिए। ये भी ध्यान रखना अगले साल, ये भी ध्यान रख लेना। ये भी नया लॉ आया है, जो कभी आप मिस्टेक कर दो। सो मैंने 115BB से भी बता दिया और मैंने अब ये भी बता दिया। अब रुकिए, अगर आपके पास ATG है तो आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अब ये क्वार्टरली होगी कि ईयरली होगी ये बताया जाएगा। टू बी नोटिफाइड, यू विल हैव टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट गिविंग द डिटेल ऑफ द नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस ऑफ द डोनर एंड पैन नंबर ऑफ द डोनर। और इसको लिस्ट बनाकर क्वार्टरली हो या ईयरली जो भी बताएंगे उसको अपलोड कर दो इनकम टैक्स अथॉरिटी की साइट पे। आप अपलोड कर देना। अब क्या होगा, वो जो साइट पे अपलोड किया, दैट अमाउंट which you have contributed because your name is there will auto populated in your site। वो आपकी साइट पे आ जाएगा कि आपने इतना डोनेशन दिया है, और आएगा तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं आएगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी आपकी रिटर्न। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अगर बाई चांस आपने दिया, उसने लिस्ट में नाम नहीं दिया, भूल गया, गलती हो गई, तो आप टेल हिम टू रिवाइज दैट लिस्ट, रिवाइज दैट स्टेटमेंट, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी ATG। अब इसमें एक फंस गया, ट्रस्ट भी फंस गया। ट्रस्ट के पास टोटल डोनेशन 5 करोड़ की आई, 3 करोड़ की डिटेल दे दी, 2 करोड़ की डिटेलें है नहीं, तो कहेगा ये तो अनोनिमस है, ला भैया टैक्स दे। अनोनिमस डोनेशन मैक्सिमम 5% या 1 लाख विचएवर हायर अलाउड है। 25 तक तो मैं अनोनिमस में नहीं मानूंगा, 5 का 5%, लेकिन बाकी तो अनोनिमस हो जाएगी। नहीं तो नाम, एड्रेस, पैन नंबर क्यों नहीं दिया, तो ये भी फंस जाएगा ट्रस्ट जिसके पास ATG है। और उसको अभी स्टेटमेंट कब फाइल करनी है अभी डिटेल नहीं आई, क्वार्टरली करनी है कि 6 मंथली करनी है कि ईयरली करनी है, अभी आएगी, रूल बनेंगे। बट ये रूल बन गया, ये एक्ट बन गया, सेक्शन बन गया, आपको करनी पड़ेगी। ये भी मैंने आपको बता दिया। ये भी आप ध्यान रखिए, हर ट्रस्ट को करना पड़ेगा। यू नो दैट ट्रस्ट हैज टू फाइल रिटर्न इन फॉर्म 7। बहुत लोग 10 फॉर्म 7 में भरते हैं, लेकिन आपको याद है और आप गलती करते हैं, फॉर्म 7 जब भरने लगो तो आता है कौन से सेक्शन में आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, उसको टिक करिए। 1023C, फिर उसके बाद सब क्लॉजेज भी हैं, टिक करिए।
11, 12 उसके पास है तो टिक करिए। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, मैं बता रहा हूं। पहले टिक करिए, नहीं टिक करेंगे तो उनको क्या पता आप क्या करने जा रहे हैं। पहले टिक करिए कि 1023C में है कि 11-12 में है, टिक करिए। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है दे देना, या अप्रूवल नंबर देना है दे देना, और रिटर्न आपको फॉर्म 7 में भरनी पड़ती है। अगर ट्रस्ट ने कोई फंड मिसलाइज किए हैं, देखिए एक और है, ट्रस्ट क्या अपने ट्रस्टी से, अपने मैनेजर से, अपने फाउंडर्स के साथ कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है? वैसे तो 13(3) में लिखा है कि इट कैन नॉट गिव एनी बेनिफिट टू पर्सन रेफर्ड टू इन 13(3) में पर्सन रेफर्ड है फाउंडर और ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, वन हु हैज गिवन कंट्रीब्यूशन मोर देन 50,000 टू द ट्रस्ट, और रिलेटिव ऑफ द ट्रस्टी, ये सब लिखा है। लेकिन 13(2) में लिखा है अगर वो आर्म लेंथ प्राइस से डीलिंग है, आर्म लेंथ प्राइस में मैंने सर्विस दी है या उसने मुझे दी है ट्रस्ट ने, अगर आर्म लेंथ प्राइस में है और वो रीजनेबल अमाउंट है, फेयर मार्केट वैल्यू से है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। नहीं तो वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आपको ये भी पता है ट्रस्ट के पैसे 11(5) में आपको एक्यूमुलेट करने हैं, आप और कहीं नहीं रख सकते, मोड इन गिवन अंडर 11(5), ये भी मैंने आपको बता दिया। फॉर्म 7 में रिटर्न भरिए, और प्लीज नोट आपको जो पैन नंबर लेना चाहिए वो टी वाला लेना चाहिए, ट्रस्ट वाला। एओपी वाला आप गलत लेते हैं, टी का लेना चाहिए, ट्रस्ट वाला, ये आप ले लीजिए। देखिए चैरिटी और रिलीजन दोनों अलाउड हैं, लेकिन एक चीज बता दूं, अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए आप रजिस्टर्ड हैं तो आप रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते। 5% रिलीजियस एक्टिविटी अलाउड है अंडर 80G। लेकिन अगर रिलीजियस ट्रस्ट है तो आप तो है ही पर रिलीजन की प्रोपोगेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलीजियस तो अनोनिमस भी ले सकता है और रिलीजियस लेकर चैरिटी कर सकता है, कौन मना करता है? सारे गुरुद्वारे चैरिटी तो करते हैं, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये कई चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं, क्योंकि बहुत सवाल होने वाले, मैं क्वेश्चन लूंगा सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने मेजर चीजें बता दी आपको। मैंने आपको बता दिया कि एक्सेस एप्लीकेशन क्या क्या करना है, मैंने आपको बता दिया 15% इनकम क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर लोगे डेप्रिसिएशन नहीं अलाउड होगी, मैंने आपको बता दिया कॉर्पस डोनेशन माफ है, ये भी आपको मैंने बता दिया, कॉर्पस डोनेशन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि भैया अनोनिमस डोनेशन क्या होती है, मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी है, नहीं तो आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सुन लेना, एक 56 सबसेक्शन 210 आ गया है। अगर एक मंदिर, गुरुद्वारा और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो, या 1023C में नहीं है तो मर गया, क्योंकि उसको कोई भी चीज 50,000 से ऊपर आई है विदाउट कंसिडरेशन, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल एसेट और इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ इट इज एग्रीगेट अमाउंट whether for one or more than one person exceed 50,000, the entire amount will become taxable in the hands of that trust or institution, no deduction whatsoever नहीं मिलेगी, चाहे वो कुछ कर ले। सम ऑफ मनी, मूवेबल एसेट जो डिफाइंड है, मूवेबल एसेट कौन सी डिफाइंड है? मूवेबल एसेट शेयर्स, सिक्योरिटीज, ऑर्नामेंट, व्हाट यू कॉल ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, ये सारी चीजें मूवेबल है, इसको ये मिलेगा। आप प्लीज, मैं कह रहा हूं, ये अगर चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है और वो रिसीव करेगा तो उसको पूरे का पूरा टैक्स लग जाएगा, अगर वो दो सब मिलाकर 50,000 से ज्यादा है। ये मत समझना कि उसको पहले तो होता था कि वो खर्च कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, खर्च कर देगा तो भी नहीं है, क्योंकि वंस इट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज 56(2)(10) उसकी कोई डिडक्शन नहीं है, ग्रॉस रिसीव टैक्सेबल होती है, ये भी बता दो। अब ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, उसके बाद कोई काइंड में चीज आती है, काइंड में डोनेशन आती है, कोई दूध दे गया, कोई घी दे गया, कोई चावल दे गया, कोई आटा दे गया, कोई बात नहीं, काइंड में आ रही है, अगर उसको अप्लाई कर देता है तो इट इज डन, रिसीव्ड इन काइंड, डिस्ट्रीब्यूटेड, नो प्रॉब्लम। अगर एप्लीकेशन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई चीज काइंड में आती है और वो अप्लाई नहीं हो सकती, देन विद इन 1 ईयर
from the end of the previous year in which it is received, it should be converted into 11.5. 11.5 के बोर्ड में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो मैं आपको बता दूं आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, वो टैक्स लगा देंगे। 11.5 में कन्वर्ट कर लेना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मंदिर रजिस्टर्ड है, मंदिर को मुकुट चढ़ा दिए किसी ने, भगवान के मुकुट चढ़ा दिए, भगवान के ऑर्नामेंट चढ़ा दिए और आपने भगवान को पहना दिए, एप्लीकेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मंदिर को गोल्ड बिस्किट कोई दे गया, गोल्ड बिस्किट दे गया, गिन्नियां चढ़ा गया, अब भगवान को तो चढ़ा नहीं सकते गोल्ड बिस्किट, या तो उसके मुकुट बना के भगवान को चढ़ा दो। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो फिर उसको विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर कन्वर्ट इन एनी मोड गिवन अंडर 11.5, नहीं तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा? काइंड का डोनेशन, काइंड का डोनेशन या तो अप्लाई कर दीजिए या विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इसको कन्वर्ट कर ले। जैसे शेयर कोई दे गया, अब शेयर तो रख नहीं सकते, 11.5 या तो शेयर बेचकर 11.5 में लगा दें, नहीं तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि शेयर अब 11.5 में शेयर नहीं है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी दान दे गया, 11.5 में तो प्रॉपर्टी अलाउड होती है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 11.5 में दे दिया तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज अगर काइंड की है, आइदर अप्लाइड और कन्वर्टेड विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इज रिसीव इन ए मोड गिवन अंडर 11.5, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ रोकता हूँ क्योंकि अब सबके सब मेरे सामने आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब सवाल बहुत है, ले लिया जाए। मैं सर नीचे से स्टार्ट करता हूँ, नीचे से स्टार्ट करता हूँ सर। मुझे पता सवाल बहुत आएंगे। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ सर, विद योर परमिशन। Is religious trust having gross receipt less than 1 crore have compulsory required to register? अरे 50,000 से ऊपर भी है तो करना है भाई, वो क्या बातें कर रहा है? वो रिलीजियस बात छोड़ दे, वो चैरिटी, वो एजुकेशनल थे या हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन थे जो 1023C में 1 करोड़ से कम वाले जा सकते थे। रिलीजियस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो 1 करोड़ वाले ओनली एजुकेशनल एंड हॉस्पिटल वगैरह है। प्लीज चलिए। Now registration at 12AB and 80G will have to be applied offline or online. सर ऑफलाइन तो कोई है ही नहीं, ऑनलाइन ही है आजकल सब चीजें। आज तो लेक्चर भी ऑनलाइन ही सुन रहे हो, ऑफलाइन कहाँ है? आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। NGO have 80G certificate registration in financial 1920. Should they apply once again? हाँ, 31 अगस्त 2021 तक दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा माय डियर, until March 20। नो दोबारा अप्लाई कीजिए और प्लीज ये वैलिड 5 साल के लिए होगा, पहले परमानेंट होता था। फॉर्म टू बी फाइल्ड इन 7 इन केस ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, पैन नंबर A और T होना तो T चाहिए। अगर AOP है तो चल जाएगा, लेकिन होना T चाहिए। कोई बात नहीं, चेंज करा लो, नहीं तो चलता रहेगा, होना T चाहिए। व्हेन ट्रस्ट टैक्सेबल एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, एक तो जब वो अनोनिमस डोनेशन आती है, एक वो 11.5 में पैसे यूज नहीं लगाता, और एक जब वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन रेफर टू 13.3 में यूज करता है, तो उस केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगता है, अदरवाइज स्लैब रेट लगता है। चलिए सर, इफ वी फिल no in column for filing registration number, the software does not permit to go ahead in form 7. How unregistered trust will file return in form? ये कह रहे हैं मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन इनको ये पता है ये कर क्या रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं किसी आदमी का, और वो सॉफ्टवेयर आगे बढ़ता ही नहीं है। अगर वो कहता है रजिस्ट्रेशन नंबर दे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन यूटिलिटी वाला बढ़ जाता है, अगर वो लिखो रजिस्टर्ड और नॉट, आप लिख दो नॉट तो वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बढ़ता है। अदरवाइज फॉर्म 5 में भरेंगे तो मैक्सिमम मार्जिन रेट पे टैक्स लगा देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, MMR से लगाएंगे। अनुज जिंदल, सर इफ एनी रिलीजियस ट्रस्ट और मंदिर वे शेयर ऑफ बेनिफिशियरी इज नॉट डिफाइंड। अरे मंदिर का शेयर डिफाइंड होता है? ये कौन सा कह दिया बेनिफिशियरी? अरे मंदिर को कौन सा शेयर डिफाइंड होता है? भगवान कोई बेनिफिशियरी थोड़ी है। देन इट इज टैक्सेबल एट मैक्सिमम मार्जिन। किसने कह दिया? अगर रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो कोई मैक्सिमम मार्जिन रेट नहीं है, स्लैब रेट है, रजिस्टर्ड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
रजिस्टर्ड विद द इनकम। वहाँ शेयर नहीं होता, वो प्राइवेट ट्रस्ट में होता है शेयर, डिफाइंड नॉट डिफाइंड, वो इनडिटर्मिन्ड और डिटर्मिन्ड। रिलीजियस और चैरिटेबल होते ही पब्लिक एट लार्ज है, तो वहां शेयर कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट पब्लिक एट लार्ज होते हैं, वहां कोई शेयर डिफाइन नहीं होता है। इन योर लोन एग्जाम्पल, इज देयर एनी ऑप्शन टू टेक इंटरेस्ट एज एक्सपेंस? यस, अगले साल जो इस साल या इंटरेस्ट जब दिया या अगले साल दिया, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, बिल्कुल है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अब कॉलेज है, अब लोन देते हो स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, ये एप्लीकेशन माना जाएगा जब लोन दोगे। जब लोन वापस आएगा तो वो इनकम मानी जाएगी, वापस आएगा तो इनकम मानी जाएगी। और बाई चांस इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो भी इनकम मानी जाएगी। ये भी लॉ है। आपने दिया लोन, आप वैसे लोन नहीं दे सकते, सिर्फ एजुकेशन के लिए दिया, वो तो काम है ना, आपके ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे चलो अपनी सिस्टर कंसर्न को लोन दे दो, अलाउड नहीं है, वो 11(5) नहीं है, वो एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट को लोन दिया फॉर एजुकेशन और आपने वो दे दिया, तो वो एप्लीकेशन मान लेंगे। जब वो वापस करेगा तो आपकी दोबारा इनकम मान ली जाएगी। इज द ट्रस्ट लायबल टू पे टैक्स ऑन द एक्सपेंस ऑन विच टीडीएस नॉट डिडक्टेड? यस, इस साल देना पड़ेगा। वो तो आपको क्या पता, आपको पता ही है, जैसे 40A(3) में 30% आपकी इनकम ऐड कर दी जाती है, ये नॉट अप्लाई मान के आपके पे टैक्स लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ कर लो। वेदर सैलरी पेड टू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अदर देन गवर्निंग बॉडी मेंबर्स नीड टू बी डिस्क्लोज्ड इन 10B। देखिए, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है 13(3) में, 13(3) वाले, फाउंडर, ऑथर, सेटलर, ट्रस्टी, मैनेजर, वन हु हैज गिवन 50,000 कंट्रीब्यूशन, रिलेटिव, ये सब के सब को आप बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन एट आर्म लेंथ, एट मार्केट प्राइस। अगर वो रीजनेबल नहीं है तो फिर आपको फंस जाएंगे और आपको डिस्क्लोज करना होता है 10B में। आगे बोलिए। इन केस ऑफ सेक्शन 8, कंपनी रजिस्टर्ड फॉर एजुकेशन, डायरेक्टर स्पेंडिंग देयर टाइम फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन टू स्टूडेंट, कैन ही टेक? उसके बाद छोड़ दिया, यस, ही कैन टेक सैलरी अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशंस। ही कैन टेक सैलरी फ्रॉम कंपनी। मना नहीं है, रीजनेबल, बट व्हाट इज रीजनेबल इज मोस्ट अनरीजनेबल टू डिसाइड, क्योंकि ये तो मानेगा नहीं क्या ज्यादा दे दिया। क्योंकि हमने देखे ट्रस्ट वाले मर्सिडीज गाड़ी लेके घूमते हैं। अबे भैया, मर्सिडीज गाड़ी क्या ट्रस्ट के लिए चाहिए, चैरिटी के लिए चाहिए? लेकिन घूम रहे हैं कॉलेज वाले, सबने मर्सिडीज गाड़ियां ले रखी है, वो सोचते हैं उनका ट्रस्ट है। एक बार ट्रस्ट में दे दिया तो वो पब्लिक एट लार्ज का है। आपको बता दूं, अगर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई तो 115 TD लगता है, TD, जिसमें ऑल एसेट्स की मार्केट वैल्यू लेकर लायबिलिटीज दस कर उस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स देना पड़ता है। आप अपील फाइल कर दो और अपील आपके अगेंस्ट डिसाइड हो गई तो भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स देना पड़ता है। अगर आप ट्रस्ट रजिस्टर मर्ज कर दो दूसरे के साथ और दूसरा अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी पूरे पे टैक्स देना पड़ता है, सारी एसेट्स में। अगर आप ट्रस्ट के डिसॉल्व कर रहे हो तो आप अपने घर नहीं ले जा सकते, आपको दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डोनेट करना पड़ता है, नहीं तो पूरे एसेट ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। एक और बात सुन लो, एक आदमी आया मेरे पास, ओपिनियन लेने बहुत आते हैं, कुछ पैसे कुछ फ्री वाले तो CA ही होते हैं, हम तो उसको ऑलवेज आई विल गिव, लेकिन क्लाइंट को तो मैं पैसे लेता हूँ, नो डाउट। CA को कभी नहीं लेता, ना लूंगा। तो आप टेलीफोन पे पूछिए, पर्सनल आइए। हैं जी, मैंने ये बोला है, अगर CA से पूछता हूँ क्लाइंट से लेना है तो फिर तो मैं पैसे लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। वो क्लाइंट से ले अलग बात है, अगर मुझे दिलवाने हैं तो पैसे लूंगा, क्योंकि ओपिनियन लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक आदमी आया, उसके 5 कॉलेज थे, कहता सर 2 कॉलेज को अब खत्म कर देता हूँ, मैं टैक्स दे देता हूँ 115 TD में 30%, तो क्या कॉलेज मेरा हो गया? मैं कहा सपने में मत सोचियो, वंस गिवन टू चैरिटी इट इज फॉर पब्लिक एट लार्ज। तेरा जिंदगी में नहीं हो सकता, तू अपना नाम जितना मर्जी रट ले, मेरा कॉलेज। एक बार चैरिटी में चला गया तो ये परमानेंट चैरिटी में होता है। चैरिटी कमिश्नर आपको अलाउ ही नहीं करे, जितना मर्जी टैक्स दे दे। इनकम टैक्स वाले टैक्स ले गए, इनकम टैक्स को ये थोड़ी पता तू एसेट का क्या करे, ले ही नहीं जा सकता, तेरा है ही नहीं। कहता फिर तो सब भर गया, फिर तो ऐसे ही चलता हूँ। मैंने कहा एक बार दे दे, सोच के दिया कर, वंस चैरिटी ऑलवेज चैरिटी। ये इररिवोकेबल होता है, होता है, आप ये नहीं कह सकते। गुरुजी, जब ये चैरिटी और डोनेशन की बात हो रही है तो मैं आपकी और ऑडियंस की नॉलेज के लिए बता दूं, इस समय हमारे जो व्यूअर है 1201 हो गए हैं।
अच्छा, वेरी गुड। 1201 हुए हैं ना, मैं समझा 1101 तो नहीं है ना कोई, अभी डोनेशन नहीं आई है। 1201 तो डोनेशन का फिगर की बता रहा था मैं। चलो, कैन कमिश्नर रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एटीजी इन केस कॉर्पस इज नॉट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर? देखिए ऐसा है, अभी तो एटीजी चुप करके दे देंगे, उसके बाद अगर कोई मिस यूज होगा, देखेंगे कि आपने चैरिटी के लिए नहीं लिया और या और कोई काम कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, तो वो आपका कैंसिलेशन भी करते हैं, एटीजी भी कर देते हैं। सनातन मंदिर registered at 12A has 3 schools. Combined ITR is filed. All account prepared separately. 85% spent. Will it be exempt if receipt over 1 crore tax audit required? नहीं जी, चैरिटी के लिए कोई टैक्स ऑडिट नहीं होता है। कोई बिजनेस इंसिडेंटल करेंगे तो टैक्स ऑडिट है। इंसिडेंटल बिजनेस करा, बुक किताबें बेची, यूनिफॉर्म बेची, कैंटीन चलाई, वो इंसिडेंटल है। एजुकेशन के लिए कोई बिजनेस नहीं है, उसके लिए कोई ऑडिट नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। एक और बात है, अगर आपके 3 स्कूल हैं, तीनों की अगर आप पैन नंबर अलग ले लें तो हर एक का 1-1 करोड़ से कम है, तो तीनों माफ है, तीनों माफ है। एक जजमेंट तो ये भी आ गया है, एक ही है, अम्ब्रेला है, तो तीनों का अलग अलग भी ले सकते हैं, पर उसमें मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इंटर एक्टिविटी करें या कुछ हो तो वहां दिक्कत आ जाती है। चलिए आगे। What is the tax status of association formed by shopkeeper of locality? Mutual association कुछ भी नहीं होता। आप म्यूचुअल एसोसिएशन बना सकते हैं, एक म्यूचुअल ऐसे ही बना लें, रजिस्टर्ड सोसाइटी बना लें, लेकिन है म्यूचुअल करेक्टर की। आप कुछ भी बना लें, एसोसिएशन बना लें, रजिस्टर करा लें, ना कराएं, वो तो म्यूचुअल एसोसिएशन है, उसका कोई दिक्कत नहीं होती। आगे, will the old trust re-register under 12AB get direct registration or will there be any scrutiny? नहीं, पहली बार 31 अगस्त को कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, आपको दे दिया जाएगा। जब रिन्यूअल कराओगे 4.5 साल से पहले जब करोगे, तब सब कुछ पूछा जाएगा, तब तो एक एक चीज पूछी जाएगी जैसे कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन। विल द ओल्ड ट्रस्ट हाउ टू डील विद एनोनिमस कैश डोनेशन रिसीव्ड बाय ए टेंपल मैनेज बाय ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड 12? कोई जरूरत नहीं है, कैश डोनेशन एनोनिमस होती ही नहीं है, चाहे रिलीजियस के लिए, रिलीजियस के लिए कोई एनोनिमस नहीं है, वो तो वही है 85% स्पेंड करो, 15% एक्यूमुलेट करो, उसमें कुछ नहीं है, वो एनोनिमस नहीं होती। न्यू रजिस्टर्ड 12AB विल बी ग्रांटेड बाय कमिश्नर, वही है कमिश्नर एग्जेम्पशन, अब सबके लिए कमिश्नर एग्जेम्पशन ही है, कोई पीसीआईटी नहीं। एनी चेंज इन एफसीआर रूल फॉर ट्रस्ट इन 2020? देखिए मैं ज्यादा एफसीआर से डील नहीं करता है, लेकिन वो होम मिनिस्ट्री देखती है, लेकिन कुछ ज्यादा चेंज होगी क्योंकि आजकल बड़ा रहता है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इनकम टैक्स में कोई रूल नहीं है, इनकम टैक्स का वही है, ये एफसीआरए के रूल देखिए। चलिए, इसे कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। व्हाट इफ ट्रस्ट गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल ऑनगोइंग सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंस इन कैश? 10,000 से ऊपर एक्सपेंस होगा तो आपको पता है अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, नहीं तो वो माना नहीं जाएगा एप्लीकेशन। और फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिविजुअल रिलीफ टू द पुअर में आती है तो अलाउड है, रिलीफ टू द पुअर में आती है तो अलाउड है। सर, चैरिटेबल ट्रस्ट कैन ट्रांसफर मनी टू नॉन रेजिडेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस एज पर एप्लीकेबल सेक्शन। ये क्या चीज है? इज दिस ए लूपहोल टू ट्रांसफर मनी अब्रॉड? किसने कह दिया तुम्हें, सतपाल सिंह जी, किसने कह दिया कि बाहर पैसे भेज सकते हैं? ये मैंने पहली बार सुना आपका। ये जरा इनको लाइन पे लाना, ये क्या कहना चाहते हैं, अगर ला सकते हो तो, नहीं तो अगला सवाल लो, बाद में देख लेंगे। We are college students who started a trust and got it registered as trust in 2018, but not you income tax act. We go to government school to make children aware about child sexual abuse. Kindly tell which section is favorable. अरे 50,000 से ऊपर आ जाएंगे ना आपके पास डोनेशन तो टैक्स लग जाएगा, ध्यान रखना। ये वो पुराने जमाने चले गए, अब जमाने बदल गए हैं। अब 56 to 10 आ गया है। Whether online discourse for consideration received by the religious trust will consider as incidental business? क्या हुआ अगर incidental भी है तो टैक्सेबल है, खर्च कर दीजिए, अलाउड है। अरे डिस्कोर्स तो करते ही है रिलीजियस ट्रस्ट, अलाउड है। चलिए सर, इफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स सो फार इट कैन अप्लाई नाउ। कर दो, अगर भगवान ना करे पिछले 6 साल के केस खोल सकते हैं, ना करे, लेकिन रिलीजियस वालों को थोड़ा कंसेशन दे देते हैं, सेंटिमेंटल इशू होता है, कर लो अप्लाई, जान छोड़ाओ।
When accumulated income not applied for 5 years but applied in first case 6th year before due date of return allowed है, you can apply in the 6th year. 5 + 1 allowed है Susham Rambia allowed है. When accumulated will FDR made during the year be considered applicable? वाह भैया, FDR में रख लिया तो एप्लीकेशन हो गया जी? नहीं, बैंक में रखना एप्लीकेशन नहीं होता है. नो, इट इज नॉट एन एप्लीकेशन. हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदो तो एप्लीकेशन है, लेकिन ये नहीं है एप्लीकेशन ऑफ इनकम. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट नॉट यूटिलाइज अंडर 11(2) फॉर 5 ईयर? 6th ईयर में खर्च कर दो, नहीं तो इनकम टैक्स लग जाएगा उसमें, और फिर दोबारा 15 नहीं मिलेगा उसमें. 5 साल में खर्च कर दो या 6वें में कर दो. नहीं करोगे 6वें साल तो आपको पूरे पे टैक्स देना है, कोई 15% नहीं माना जाएगा. In case a trust having object of education carries out business activity also and the turnover of same is more than 1 crore, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा जी? हाँ, कराना पड़ेगा उसका, जिसके सेपरेट अकाउंट बनाए हुए उसके. माइक्रो फाइनेंस बाय चैरिटेबल ट्रस्ट वेदर एग्जेम्प्टेड? यस, ये रिलीफ टू द पुअर में आ जाता है. माइक्रो फाइनेंस दिनेश सूद, इसकी जजमेंट है. यस, रिलीफ टू द पुअर में आ रहा है माइक्रो फाइनेंस. व्हाट अबाउट प्री रजिस्ट्रेशन रिसीट? व्हाट इज प्री रजिस्ट्रेशन? प्री और आफ्टर का क्या मतलब है? प्री वाला टैक्सेबल है. चलिए, व्हाट, ये तो टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है. When will the accumulated 50% become taxable? जी नहीं, चलता रहता है. 15% हर साल कर लो, जब तक ट्रस्ट डिसॉल्व नहीं होता एग्जेम्प्ट है, इसको खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 11(5) में रखना पड़ेगा. कैन अपीलेंट ट्रिब्यूनल इटसेल्फ पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कमीशन टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन? हमेशा डायरेक्ट करता है, कई बार करता है, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है. शुभम राय कर सकता है. कॉर्पस फंड taken for purchase of immovable is not spent due to lack of funds from more than 1 year. Any firm need to apply for accumulation of corpus? देखिए, कॉर्पस 2 तरह के होते हैं, एक जनरल कॉर्पस, एक स्पेसिफिक कॉर्पस. दोनों कॉर्पस ही माने जाते हैं. स्पेसिफिक कॉर्पस इज फॉर ए सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस, जैसे इन्होंने बताया बिल्डिंग खरीदने के लिए. और जनरल कॉर्पस आपकी मर्जी है, जैसे भी करो या ना करो. हमने जनरल कॉर्पस कैपिटल फंड दे दिया है, दोनों माफ है. लेकिन रुकिए, स्पेसिफिक कॉर्पस के लिए आपका टाइम पीरियड नहीं है, तो आप बाद में भी यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर डोनर ने कह दिया ये टाइम पीरियड है, तो डोनर से एक्सटेंशन ले लो, या डोनर से कह लो ये नहीं हो सकता, दूसरे के लिए अलाउ कर दो. कुछ नहीं होता. चलिए आगे. If a trust received share of a private limited company as donation and trust did not found any find होता है, any person who takes share as FM value, what can trust do this case? नहीं रेप्लिकेट, ये तो करना पड़ेगा सर. ये नहीं होगा. अरे वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वही खरीद लेंगे, रेट नहीं मिलेगा ना. बट आप ये ना कह दीजिए कि जी नहीं, वो तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इन 11(5), नहीं तो उसकी वैल्यू लेकर वो टैक्स कर देंगे. और क्या होगा, उस अमाउंट को टैक्स कर देंगे. नेक्स्ट वन, एडवांस गिवन बाय एजुकेशन एड टू प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, ही इज नॉट मेंबर ऑफ मैनेजमेंट. मेंबर और नॉट मेंबर क्या फर्क पड़ेगा, बट रिलेटेड पर्सन ऑफ वन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी मेंबर, व्हाट इज द टैक्स इंप्लीकेशन? टैक्सेबल. आप दे नहीं सकते, क्योंकि अगर वो रिलेटिव है या वो है, ये आर्म लेंथ थोड़ी है. अगर आर्म लेंथ के लिए एडवांस दिया है, कोई उससे सर्विस लेनी थी, तो अलग बात है. अदरवाइज टैक्सेबल. ऐसे सिंपल लोन ले लिया फॉर एनी अदर रीजन, पूरा टैक्सेबल. Misuse of funds. Sir, when return is filed through utility form 7 of a registered trust, then why is tax being calculated at the rate of 30% even when the total income is less than 2,50,000? नहीं मैम, आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, टिक नहीं किया. वो जो कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपने टिक नहीं किया है, आपने कुछ डिटेल पूरी नहीं डायल करी, इसलिए वो 30% पे टैक्स कर रहा है, अदर कभी नहीं करेगा. या फिर वो वाला होगा जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स होना है, उसमें तो ठीक है. वो जो मिसयूज करा फंड्स को, या वो वाले करे जो आपने बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर टू 13(3) है, उसमें तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगता है, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं. चलिए, कॉर्पोरेट डोनेशन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज एजुकेशन ऑफ सम स्पेसिफिक चाइल्ड, आपकी कर सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, कर सकते हैं. फिर वो फर्क क्या पड़ा? कॉर्पस डोनेशन तो आप रेवेन्यू कर रहे हैं, कर दो, तो माफ है.
वो तो माफी है। वैसे भी कॉर्पस ना भी होता तो खर्च कर देता तो अलाउड था। रिन्यूअल एग्जेम्पशन अंडर 1023 ट्रिपल ए applied in 2018 for assessment year 19 onward but pending in spite of the follow up return was filed। इससे मुझे क्या लेना देना? ये चैरिटेबल वाली, इसमें चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं आता 1023 ये वहां जाइए, उसके लिए रिमाइंडर भेजिए और उसके लिए मांगिए वो वाला। यहाँ पर रूल नहीं है। एक था पहले रूल आया था, आपने अप्लाई कर दिया ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, 6 महीने का टाइम होता है, अगर वो 6 महीने में कोई जवाब नहीं देता या रजिस्टर नहीं करता तो वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान ली जाती है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ गई है, ये इसके लिए आई थी, रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन एक चीज बता दूं, डीम्ड रजिस्ट्रेशन तो आ गई, लेकिन पैन नंबर नहीं होगा, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो एप्लीकेशन कहाँ से करेंगे? अप्लाई रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? तो उससे कहो दे मुझे नंबर। Sir, what if you trust gives financial support to any individual for his ongoing educational project and the donee expense in cash? Then what is legal issue to them? No legal issue provided आप रजिस्टर्ड हैं और आपके ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है किसी के लिए ये रिलीफ देना, उसको डोनेशन देना, कोई दिक्कत। आउट ऑफ करंट इनकम। Prior period expenses are allowable in application of fund. What is prior period expense? I told you ना सुदर्शन अरोड़ा कि अभी जजमेंट आई है सुब्रोज एजुकेशनल सोसाइटी वेयर एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ द अर्लियर ईयर कैन बी टेकन एज द डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। चलिए, वेदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल आल्सो प्रोवाइड लाइसेंस टू केमिस्ट इज एलिजिबल फॉर 12AA। ये कौन सा 12AA आया फार्मेसी काउंसिल ने दिया? ना जी, मुझे इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन चाहिए और आप चैरिटी के लिए हैं तो इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन मिलेगी, अगर चैरिटी के लिए नहीं है तो नहीं मिलेगी। फार्मेसी काउंसिल का क्या मतलब? सर, कैन एनआरआई बिकम द मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ न्यू ट्रस्ट? कौन सा ट्रस्ट? चैरिटेबल ट्रस्ट? क्यों नहीं हो सकता? अगर वो इंडिया में आके ट्रस्ट कर रहा है या मैनेज कर रहा है तो हो सकता है, कोई मना नहीं है एनआरआई। चलिए आगे। FA अंडर 115D इज ऑन डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनकम और डेट ऑफ वायलेशन। जिस साल आपका टैक्सेबिलिटी होगी उस दिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू है, उस वक्त नहीं, जब आपको ये टैक्स लगाना है उस वक्त। चलिए, जतिन गर्ग, इन फॉर्म 10B वी नीड टू रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अप टू द अमाउंट ऑफ डोनेशन और वी कैन ऑल्सो रिपोर्ट अबाउट दैट। आई टोल्ड यू ना, अभी आएगा, फॉर्म चेंज होगा, नहीं तो हम उसमें पूरा देके ना नीचे डाल दिया करते थे एस्ट्रिक लगा के रिपोर्ट में कि भाई ये एक्सेस एप्लीकेशन है और ये कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये अगले साल की एप्लीकेशन मानी जा सकती है। हम तो ऐसे कर दिया करते थे। कैन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन डोनेशन कैन हैव सेपरेट रिसीट नंबर? ऑफलाइन एंड क्यों नहीं है? हो सकती है, किसी को दिक्कत नहीं है, रिसीट नंबर सेपरेट होने में कोई दिक्कत थोड़ी है। कई बार तो 3 आदमी डोनेशन रिसीव कर रहे होते हैं तो पर बुक उनको दे दी जाती है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन पैन नंबर, एड्रेस सब कुछ हो। Sir, gross receipt is below 1 crore of an education trust and there is no approval. Form number 7 is asking any approval. बेकार की बातें करता है, ये वही सॉफ्टवेयर बीमारी है। अगर 1023(3)(a)(d) लिखेगा तो उसको लेना पड़ेगा, चाहे कुछ कर ले। ये सॉफ्टवेयर वाले भैया सारे महानुभाव हैं, जितना उनको आता है उतना ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। 1023(c)(3)(i)(a)(d) लिखेंगे, उनको लेना ही पड़ता है, ये गलत है। NGO have ATG registration in 19 but no donation received till March, then audit report required to done for the सर वो नील रिपोर्ट है ना यार, कर दो ना, आगे चलिए, नील है ना। टैक्सेबिलिटी ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय म्यूचुअल सोसाइटी रजिस्टर्ड एज AOP। अगर 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो रिटर्न भरनी पड़ेगी इसको। जो भी इनकम अदर देन मेंबर्स है, दिनेश सूद जी, जो भी इनकम अदर देन मेंबर्स है वो सारी की सारी टैक्सेबल है if it exceeds ₹2,50,000 provided that trust is registered, that in society is registered। तब school building owned by author trustee in personal name and not in school trust name, so school has 12AA, any issue? कोई इशू नहीं है, वो तो रेंट भी दे सकते हैं अगर देना चाहें, जो रीजनेबल रेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। no activity being carried on by trust, interest on FDR being earned, whether it can be wound up, if yes how? कोई वाउंड अप नहीं होगा, सारा पैसा दूसरे ट्रस्ट को देना पड़ेगा, तेरे घर का नहीं है भैया। मैंने बोला इट इज पब्लिक एट लार्ज, आप इसके मालिक नहीं हैं,
इसको दूसरे को डोनेट कर दो। अगर अगर एक्यूमुलेटेड है तो 115 TD में लिखा है कि डोनेट कर दो रजिस्टर्ड को, तो हो जाएगा। Sir, under which head income is to be disclosed in ITR by educational institution registered under 1023C in respect of income over expenditure? Income over expenditure, excess of income or expenditure. अरे आ जाएगा यार, ये केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट का आया ही है। Let us see, हम कोशिश कराएंगे चेंज कराने की। Anonymous donation other than taxable at 30% is to be taxable at normal rate. जी नहीं, 30%. So is 15% accumulation available? जी नहीं, accumulation not available. जितना भी अनोनिमस डोनेशन है उसमें 5% माफ करके बाकी पे टैक्स लगना है। एनी स्पेसिफिक टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ द फॉरेन डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड अब्रॉड है। अरे पेरेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड अब्रॉड, वो आपको बताया, वो जो कंट्रीब्यूट रेगुलेशन फंड है FCRA, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज, FCRA की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसकी रिटर्न करनी पड़ेगी, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये देख लेना, नहीं तो उल्टा आप फंस जाएंगे। ये तो FCRA बाहर से पैसा आएगा तो बहुत बहुत मुश्किल काम है। जब तक FCRA में सर एक्टिविटी टू एक्टिविटी भी डोनेशन ले सकते हैं। हाँ, फॉर FCR कहाँ? हाँ, परमानेंट भी रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, ठीक बात। प्लीज टेल अबाउट रजिस्ट्रेशन एट 12A and ATG अप्लाइड इन February. व्हाट शुड बी देयर स्टेटस? ये मर्ज हो जाएगा, इसके लिए दोबारा नहीं करना। ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, अगर तो मर्ज हो जाएगी और आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना, आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। जिसको ऑलरेडी रजिस्टर हुआ उसको करना अप्लाई। हाउ टू अकाउंट फॉर डोनेशन इन काइंड इन बुक्स टिल इट इज कन्वर्टेड इनटू मोड। अरे बुक्स को अप्लाई कर दो ना यार, क्या बातें करता है। बुक्स अगर लाइब्रेरी की है तो पढ़ रहा है बच्चा तो अप्लाई हो गया। बुक्स का क्या मुश्किल है काम यार, बुक्स से अपनी पढ़ना लगे, बुक्स पढ़ाई हो गई तो बुक्स अप्लाई हो गया। बुक्स दे दिया अगर स्टूडेंट को तो भी अप्लाई हो गई, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। An educational institution registered under 12AA and having gross receipt less than 1 crore can merely filing of ITR to avail benefit NC will comply with the requirement. Yes, करते allowed है 1 crore से पहले। सर रजिस्ट्रेशन रिटर्न कंपलसरी है। सर कैन ट्रस्ट गिव लोन? जी नहीं, ट्रस्ट कैन गिव लोन टू ओनली फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। पर स्टूडेंट को दे दिया, ये दे दिया, नॉट टू ऑल। नो, इट कैन नॉट गिव टू ऑल फॉर परफॉर्मिंग इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही चैरिटी करना है तो वो उसको दे रहा है स्टूडेंट्स को, तो ठीक है। चलिए, ए ट्रस्ट अंडर 12A लॉन्ग बैक के स्पेलिंग ही बक कर रहा है, and obtained approval under ATG, but ATG not renewed since many years, but filing ITR as trust up to date. ATG रिन्यू होता ही नहीं आजकल, वो पहले होता था। ATG एक बार पहले फाइनल हो गया तो उसके बाद परमानेंट हो गया था। आई डोंट नो कितना पुराना है, एक बार परमानेंट हो गया था, लेकिन अब 31 अगस्त को दोबारा अप्लाई करना है। UPA 2 के अंदर हुआ था सर ये। हाँ जी, हाँ जी, UPA 2 में ATG परमानेंट हो गया था 2009। अब ये UPA 2 कब था मुझे कहाँ याद है, मुझे तो BJP का पता है, UPA अब तो NDA 2 हो गया है। चलिए, if any amount is related to PM Care Fund by registered NGO, then it will be treated as application. Yes, current income, you can donate current income, allowed कर दिया है। Please explain the word which may be approved by the prescribed authority in section 23CV. Is it compulsory to get the approval? Yes. ये नोटिफिकेशन होते थे, अब अप्रूवल होता है। मैंने बोला था ना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये बिरला मंदिर, कई और भी कईयों को 1023C में जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको इन्होंने अप्रूवल दे रखी है 1023C IV और V में, लेकिन सारी कंडीशन वही लगती हैं जो VI और VIA को लगती है। चलिए सर, कहने होल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई फॉर 12AA एंड ATG, मतलब तू चैरिटी करेगा? ये मेरे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के लिए पूछ रहे हैं। अगर कोई सोसाइटी बनाई है तो जरूर कर सकते हैं। आप सोसाइटी क्यों नहीं बना सकते? कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंट बिजनेस नहीं कर सकता, बट ही कैन बी ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट व्हिच इज नॉट कैरिंग ऑन एनी, यू कैन। ऐसे क्या दिक्कत है? चलिए सर, अंडर विच हेड ऑफ इनकम ऑफ ए अनरजिस्टर्ड सोसाइटी रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज टू बी शोन बिजनेस इनकम? बिजनेस इनकम कर ले तो खर्चे भी मिल जाते हैं ना, इसलिए ले ले बिजनेस इनकम और कर लो, और इसको दिखा दो, इसके लिए फॉर्म 5 भर दो। डिफरेंस बिटवीन PM केयर फंड एंड PM रिलीफ फंड। और सर PM प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड अलग है, उसके लिए कई ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। केयर फंड के लिए स्पेसिफिक कोविड-19 के लिए आया है, केयर फंड जो आया है वो स्पेशल इसके लिए आया है।
सिटीजन अवेयर फंड जो है वो स्पेशल इसके लिए, उसका नाम है सिटीजन अवेयर रिलीफ, ऐसे कुछ नाम है। दो केस पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन सेफर साइड अंडर विच हेड इनकम to be disclosed in ITR by education institution registered under 2023C in respect of excess income over expenditure। मैंने आपको बताया ना, ये अभी तक तो कुछ नहीं है इसमें, अभी तक बता रहा हूँ दे नहीं रहे, लेकिन आप जीत जाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपके फेवर में डिसीजन है वो सुब्रोज एजुकेशनल सोसाइटी। चलिए, आपके फेवर में डिसीजन है सर, सीए जॉब इज बेटर और इनकम टैक्स ऑफिसर जॉब इज बेटर। कमाल है, चलो जी आगे। कैन ट्रस्ट टेक लोन फ्रॉम ट्रस्टी? बिल्कुल ले सकता है, ट्रस्ट कैन टेक लोन बट ट्रस्ट कैन नॉट गिव लोन, इट कैन टेक लोन, लेकिन इंटरेस्ट देगा तो आर्म लेंथ पे होगा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकता, आर्म लेंथ पर होगा। चलिए, कैन अपस्पेंड अप नहीं होता, अनस्पेंट फंड ऑन ग्रांट रिसीव्ड अंडर एफसीआरए टू बी रिटर्न टू डोनर। भाई साहब, ये एफसीआरए के रूल पढ़िए, उसमें कई चीजें लिखी हुई हैं और उससे चलिए। मैं एफसीआरए को डील नहीं करता, मैं कभी गलत एडवाइस नहीं दूंगा जब तक मैं खुद नहीं जानता हूँ। चलिए अगला, सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन गिव लोन टू द एम्प्लॉय। अरे यार, नॉर्मल एक्टिविटी लोन देने की है तो क्या दिक्कत है? अरे नॉर्मल अपने एम्प्लॉय को लोन देता है तो दे दे, अदर वो नहीं होने चाहिए पर्सन रेफर टू इन 13(3). अदरवाइज तो जब एजुकेशन कर रहा है, स्कूल के प्रिंसिपल है, स्कूल के एम्प्लॉई हैं, उनको लोन वोन तो देना ही पड़ता है और वो वापस भी आ जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? कैन टेम्पल बी ट्रीटेड एज एनपीओ एज देयर एंटायर इनकम इन यूटिलाइज फॉर पर्पज ऑफ रनिंग ऑफ टेम्पल? तो क्या हुआ? अरे बोलिए, चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नाम है इनका नाम चैरिटेबल और रिलीजियस। रिलीजन तो होता ही प्रोपेगेटिंग ऑफ रिलीजन है, चैरिटेबल होता है फॉर ओनली फॉर चैरिटी। चलिए, मैं सेक्शन बता रहा हूँ, आप एनजीओ वर्ड तो आपने यूज किया, मैं तो एनजीओ यूज ही नहीं करता, मैं तो चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यूज करता। सर, द रजिस्ट्रेशन अंडर 11-12 and 80G is possible for new formed trust and activity yet to commence. Yes, now possible. Apply. Provisional registration will be given to you. Section 40A is applicable for resident if expense incurred by trust. If TRS not deducted, then 30% not treated as application of income. This is loophole in case NR before, they no need to deduct TDS. पहला तो पॉइंट, एनआर ने एप्लीकेशन ऑफ इनकम इंडिया में करनी होती है, बाहर तो एप्लीकेशन कर ही नहीं सकता, वो बाहर एप्लीकेशन नहीं कर सकता। चैरिटेबल ट्रस्ट हैज टू अप्लाई दैट इनकम इन इंडिया, और बाहर से कोई माल मंगवा सकता है लेकिन अप्लाई नहीं कर सकता वो इनकम। इफ ए ट्रस्ट हैज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड which is beyond the limit specified, whether trust is liable to spend? Yes, ये तो करना पड़ेगा, ये कोई एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी है, ये तो सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, ये तो कैपिटल गेन है, करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम हो तो खोल सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म इज द रिन्यूअल ऑफ 12A and 80G टू बी मेड? फॉर्म ऑलरेडी है, 12A का फॉर्म ऑलरेडी है, 10 फॉर्म ऑलरेडी फॉर्म है, नई चीज क्या है? 10A उधर 56D, 10A ऑलरेडी है। ट्रस्ट हैविंग एजुकेशनल इनकम हैविंग रिसीव्ड लेस देन 1 करोड़ फाइल्ड ITR 7 बट फ्लैग्ड एज डिफेक्टिव। यार मैं क्या बोलूं, कुछ ना कुछ गलती आपने करी है तभी तो फ्लैग्ड है, मुझे क्या पता अब क्या गलती करी है, आप मुझे दिखा देना, देख लूंगा। CIT exemption rejected 12AA, tribunal directed to reconsider the application which is still not decided, will have to file fresh application before। जी नहीं, 31/8 वाली तो वही है जब रजिस्टर्ड हो चुके, जब रजिस्टर्ड नहीं हुए फिर तो नई एप्लीकेशन है, लेकिन अगर उसने एप्लीकेशन नहीं करी वो तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाना चाहिए। आप उसे कहिए ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन है, आजकल सोसाइटी फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह की जजमेंट है, वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। चलिए आगे, सर ट्रस्ट रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट 17-18 and 18-19 then it is eligible for exemption। देखिए मैं एक चीज बता दूं, एक जजमेंट आपके फेवर में है और एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे रखी है। रिटर्न तो आप फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट के बाद, लेकिन 11(2) नहीं मिलेगा और 9A नहीं मिलेगा, लेकिन रिटर्न फाइल कर सकते हैं 139(4) में, रिटर्न फाइल कर सकते हैं 139(4) में, लेकिन 11(2) जो मोर देन 15% है वो नहीं मिलेगा, 9A जो अगले साल करा वो नहीं मिलेगा। चलिए
We ran a campaign on Cato online platform for donation for COVID-19. Received few foreign donation also. मर जाएगा foreign donation. No FSA registration. अरे रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये दे दे, डिटेल दे दे, नहीं तो तुम ही अंदर हो जाओगे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, उसको देनी पड़ती है डिटेल फॉरेन कंट्रीब्यूशन की। कैपिटल लॉस ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ए ट्रस्ट, कोई लॉस क्या होता है? लॉस क्या होता है? यहाँ पर कोई लॉस वॉस नहीं होता, एक्सपेंडिचर या रिसीट, कोई लॉस नहीं है। सर ट्रस्ट रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, मैंने बोल दिया ना, हो गया ये तो। हाँ चलिए हो गया सर। एक केस है, किसी ने कंपनी बनाई सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर पैन नंबर मिलता है कंपनी का, एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर द ट्रस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। उसके अंदर फॉर्म 7 में रिटर्न भरेंगे या कंपनी में, क्योंकि कंपनी का पैन नंबर वो लेता नहीं है। कंपनी एक बेकार की बात है। नंबर 1, कंपनी का पैन नंबर तो ले ही नहीं सकते थे, आपको लेना ही ट्रस्ट का था, आपने गलत सर बट कंपनी का पैन, सर कंपनी का पैन नंबर तो मिलती है। सेक्शन 8 कंपनी का कंपनी नहीं होता। आप फॉर्म 6 देखो ना, वहां लिखा है अदर देन which is supposed to file form 7 other than charitable registered under 8। sir agreed, but MCA allowed PAN number immediately at the time of incorporation of a company from last 1 year। और स्टेट पैन मांगता है ना, वो पैन मांगता है ना, तो आप 8 में जा रहे हो तो आपने क्यों नहीं ट्रस्ट के लिए अप्लाई किया? आपको वो करना चाहिए था पैन, आप गलत अप्लाई कर रहे यार। नहीं आपको करना ही वो चाहिए था, अब बदल लो ना। यू कैन गेट द पैन चेंज यार, चेंज द पैन, change the PAN. You cannot keep the PAN of company. You will have to go for PAN of the trust. You cannot. If a society arranges marriage for poor girls and boys from charity received for society at large, will it be eligible for registration? Why not? Relief to the poor है, बिल्कुल। शादी कराना भी रिलीफ है, चाहे वो बाद में रोते रहे, लेकिन अभी तो रिलीफ ही है, करा सकते हैं। सर प्लीज सजेस्ट ऑन टाइमलाइन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू इनकम टैक्स लॉ। डायरेक्टर्स कोड का नाम मत लेना, मुझे एलर्जी है, उसका नाम न्यू इनकम टैक्स एक्ट है। इफ इट इज टू बी एप्लीकेबल एनी सून, हमने दे दिया है, वो अभी सोच रहे हैं अब क्या होगा। कुछ चीजें तो यहाँ ले आए हैं, वेट एंड वॉच। इज इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू बी टेकन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए सोर्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो रेंट में ही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? जब अप्लाई कर दोगे तो हेड ऑफ इनकम की जरूरत ही नहीं है, जब अप्लाई नहीं करोगे तब हेड ऑफ इनकम आएगा, अप्लाई कर दोगे तो हेड ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है। सर विद ड्यू रिगार्ड, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10, whether it is confined to academic education only or can be extended to promotion of culture, art and literacy। देखिए रजिस्टर्ड कोर्स होना चाहिए, एजुकेशन वही जो रजिस्टर्ड वाली हो। अगर रजिस्टर्ड एजुकेशनल है तो हो सकता है, अगर रजिस्टर, जैसे आर्किटेक्ट का कोर्स भी तो है, आर्ट का स्कूल भी तो है, अगर रजिस्टर्ड एजुकेशन है तो हमें क्या लगता, कोर्स रजिस्टर्ड हो तो हो जाएगा, तो ठीक है। आर्ट भी तो एक होती है। इफ ऑल द ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट डाई साइमल्टेनियसली, व्हाट विल हैपन विद द ट्रस्ट? हे राम, उसमें लिखा जाता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रस्टी पावर होगी, इसको अपॉइंट कर लिया जाए। सारे इकट्ठे ही मर गए, क्योंकि सुनील राजपाल जी बड़े ही ज्यादा नेगेटिव आदमी है, सारों को मार देंगे। अबे भैया रहने दे यार, कुछ सोचो समझो, ऐसे सवाल मत पूछा करो। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, अगर सारे मर गए तो ट्रस्ट तो कोई रन करेगा ना, वो कोई ना कोई होगा, उसको कहिए कि वो ट्रस्टी के रेजोल्यूशन पास करके कर लेंगे, परमिशन ले लेंगे नए बनाने के लिए, कोर्ट में चले जाओ, ट्रस्टी बन जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे सवाल सुने नहीं है सर। आगे चले सर। एक सुनील बत्रा जी हैं, उन्होंने पूछा है व्हाट्सएप डाल के कि सर प्लीज आस्क व्हेन कैन नाउ न्यू ट्रस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? एनी टाइम उन्होंने पूछा। अच्छा, एनी टाइम यू कैन डू इट, लेकिन आपको प्रोविजनल मिलेगा। ओके। लेकिन पहली बार लेना है इस साल, देखिए इस साल तो अभी लाइव बना है, अगले साल अगर अगले साल लेना है तो 28 फरवरी तक अप्लाई कर देना, 1 महीना पहले फ्रॉम द कमेंसमेंट। अब कोई कल मेरे से पूछता है सर नया ट्रस्ट बनाया है, तो मैं मेरे को क्या पता, मैं 1 फरवरी को क्या 28 फरवरी को कैसे कर दूं? जब नया ट्रस्ट बनता है ना तो उसका प्रीवियस ईयर होता है फ्रॉम द डेट इट इज सेट अप टिल 31 मार्च, तो उसके 1 महीने पहले कर दो, उसके 1 महीने पहले। 1 महीने पहले तो पता लग गया
तो ऐसे मत करना कि नया ट्रस्ट का फर्स्ट प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है एंड इट कमेंसेस फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज एस्टैब्लिश्ड एंड टिल 31st मार्च. चलिए, if there is a society registered under society act, so PAN will be applied as AOP और ट्रस्ट. अगर आप चैरिटी हैं तो ट्रस्ट के लिए अप्लाई करिए, आप चैरिटी नहीं करते तो AOP करिए. Sir, can issue can be raised regarding higher administrative expenses? Why not? अगर अनरीजनेबल एक्सपेंसेस हैं तो क्यों नहीं रेज कर सकता वो कि मिसयूज किया, बोगस डाले, ये तो कभी भी स्क्रूटनी में होता ही है, ये तो हो सकता है. नहीं तो आप जो मर्जी डाल दो और बाद में कह दो जी ये वो हो गया ना. वही तो कह रहा हूँ, गाड़ियां ले लेके घूमते हैं, मर्सिडीज गाड़ियां. सर की कनेक्टिविटी में देखिए सर, क्या हो गया सर की कनेक्टिविटी में? जैसे हमारे हो गया था वैसे सर के में भी हो गया. आ गए? अच्छा, आ गए नहीं आए, चेयरमैन साहब आए थे. क्या हो गया सर की कनेक्टिविटी? एकदम आहूजा सर की कनेक्टिविटी में He's just come. हाँ, I've come back. Yeah. ये तो मैंने बोल दिया, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तो स्क्रूटनी करते हुए कुछ भी देख सकता है कि प्रूव करो ये जेन्युइन एक्सपेंसेस है. ये क्या बात है? ये तो स्क्रूटनी हो रही है तो आपके गलत एक्सपेंडिचर किए हैं तो करना पड़ेगा. चलिए, एनी अदर? In what manner corporate donation can be utilized? Any manner you like, or you keep it in bank. I'm not saying anything. Don't utilize. Keep it in bank 11/5. That's all. जरूरी नहीं है यूटिलाइज करना. I think so. All queries now have been answered. चलिए, हाँ, now I think so we should come to closure of the session, क्योंकि सर तो जब तक लगे क्वेरीज तो चलती रहेंगी, चाहे अगले 1-2 घंटे तक भी आप करते रहो. सर को शायद नेक्स्ट सेशन में भी जाना, उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है. तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा. कहाँ गए हमारे सेक्रेटरी साहब? मैं सोच रहा था वो कहाँ गए अपने अजय जी. वो जब भी बोलने का मौका आता है तो उनका कनेक्शन आ जाता है. एनीवे, चलो, थैंक यू सो मच फॉर दी सेशन. थैंक यू दी हिमाचल ब्रांच. हमारे बीच में मनु शर्मा जी हैं, तो मैं चाहूंगा आज के होस्ट वही हैं, तो मैं उन्हीं से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ही वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे आएंगे. और मैं थैंक्स हमारे चेयरमैन शशांक जी का, विजय गुप्ता जी निकासा मेंबर, और सर का तो स्पेशल आशीर्वाद रहता ही है. उनको तो क्या, हम ऐसे उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे तो कितनी बार थैंक्स बोलेंगे, तो उनका तो थैंक्स हमेशा हमारा रहता है सर का. और सर को हम ऐसे ही परेशान करते रहेंगे अपने मेंबर्स के लिए. सर की आवाज शायद नहीं आ रही है, तो मनु जी आप प्लीज वोट ऑफ थैंक्स के लिए, मनु जी आप क्लोज करिए. अब अनम्यूट हो गया, पहले म्यूट हो गया था. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे इंडोर. कुछ पता नहीं है, 3 मई के बाद भी एक्सटेंड दिल्ली में तो हो ही जाएगा. दिल्ली में तो होगा, दिल्ली में तो होगा ही होगा. स्टे इंडोर, कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखिए. ही इज वेरी काइंड. कोई नहीं है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जो वो करता है अच्छे के लिए करता है, ये सोच के चलना. ठीक बात है. पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कीप पॉजिटिव माइंड. क्योंकि मैं कह रहा हूं जो पॉजिटिव नहीं होता वो हमेशा मुश्किल में आ जाता है. पॉजिटिव रखिए, कोई दिक्कत नहीं है. भगवान कर रहा है, अच्छे के लिए कर रहा है जो भी करता है. स्टे हेल्दी और प्लीज अपने आप को ध्यान रखिए. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू. मनोज जी आप क्लोज कर दीजिए. हाँ जी, थैंक यू यादव जी. मैं एक बार सभी मेंबर्स का जो यहाँ से वेबिनार पे आज ज्वाइन हुए हमारे साथ, उनका धन्यवाद करूंगा कि, और उनकी पेशेंस का जो इतने इससे उन्होंने किया, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे किए हुए हैं. और होप जो भी लोगों के क्वेश्चन थे एनजीओ के रिगार्डिंग, वो भी सारे के सारे होंगे. आहूजा सर ने काफी अच्छा एलैबोरेट किया है, तो थैंक यू आहूजा जी फॉर योर गिविंग अस दैट मच टाइम. और साथ ही मैं धन्यवाद करूंगा अपने NIRC चेयरमैन शशांक जी का, सेक्रेटरी अजय सिंगल भाई जी का, वो हमेशा गायब ही है, तो एक बार मैं यही चाहूंगा कि लास्ट में फ्यू वर्ड अजय भाई के भी मिले. उसी तरह अपने यादव जी का धन्यवाद करूंगा, एक्स ऑफिशियो हिमाचल प्रदेश ब्रांच एंड निकासा चेयरमैन. थैंक यू. विजय गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, निकासा मेंबर NIRC. तो अजय भाई मैं बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये तो यही है कि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होगा, जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है. अजय भाई फिर गायब हो गए यार.
Please let's close the session. Let तो us लगता है close कि this session. ठीक है सर, ओके, मनोज थैंक जी, यू। इसी thank के you. साथ सभी का Thank you. धन्यवाद। Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, Thank you. Thank you.